All right, so welcome everyone. This session is about very specific topic जिसमें हम syllabus और syllabus overlap and references सब उसकी बात करेंगे. So this F जो audience that we have right now is a very specific audience. All right. So less of the exploratory kind of questions that we had last time. We will still have a question and answer session at the end. लेकिन अभी के लिए जो हम चीजें करेंगे वो पहले बहुत specific करेंगे. So let me start by introducing myself. I hope that since you have come to this session, you have some idea about who I am. So I am Komal Sahai. I am the founder of Econiti, and I have a PhD in economics, and I have done my master's from Delhi School, PhD from ISI, then a couple of years of teaching, and then I started Econiti. So at Econiti, we teach for these high stakes competitive examinations or for economics. So UPSC with the mains, the economics optional part, Indian Economic Service, and RBI Grade B, DEPR1. सो लास्ट सेशन में इसके ऊपर मैंने काफ़ी डिटेल्स वगैरह दिया था कि क्या चीज़ें हैं, कैसे अलग हैं, या क्या सिमिलर है, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट. दिस इज फॉर द स्पेसिफिक केस ऑफ स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि ये चीज़ें या एटलीस्ट इन तीनों एग्जाम में से उनका मोटा मोटा डिसीजन हो चुका है. सो वी विल गेट स्ट्रेट टू दैट. ठीक है. एंड यू guys had some expectations about this session जो कि you've put up in the forum. We will get to those at the end of the session. We'll have a good time allocated for that, so don't worry. The way I have designed the session is so that कि जितने भी वो सवाल थे वो आंसर हो जाए अपने आप. फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक डाउट रहता है या कोई सवाल है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. व्हाट आई विल प्रेफर इज कि जो बीच में तुम लोग अगर कोई सवाल पूछो तो वो क्लैरिफिकेटरी सवाल हो. एंड इफ यू हैव अ मोर a question that requires more discussion, then we keep it towards the end. All right. So let me share the screen and uh, so let me share the screen and then we'll get started. All right. So all of you can see my screen, which has the Start Right Complete Exam Roadmap. Yeah, I believe that, हाँ, if you give me a thumbs up or something like that, तो मेरे को वो चीज़ यहाँ पे इस स्क्रीन से भी दिख जाएगी. ठीक है. Okay, so as I said, specifically for these three exams, we are going to talk about UPSC Economics Optional. We're going to talk about Indian Economic Service and RBI Grade B, but in the DEPR section, Department of Policy and Research, specific research wing of RBI. ठीक है. अभी मेरा जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग रहता है कि स्टूडेंट्स डेफिनेटली नो दिस दैट देयर इज एन ओवरलैप इन दी सिलेबस. थोड़ा बहुत टाइमलाइन का भी आइडिया उनको होता है, लेकिन वो स्पेसिफिक ओवरलैप क्या है और व्हाट इज स्पेसिफिक टू ईच एग्जाम, दैट इज समथिंग दैट इज अ पेन पॉइंट. अनदर थिंग दैट इज अ पेन पॉइंट इज द रेफरेंसेस. सो इफ यू आस्क एआई, जो कि मैंने भी कोशिश की कि भाई मैं भी काम फटाफट करूं और मैं एआई से जनरेट करवा लूं, तो एआई ने जो रिस्पॉन्सेज मेरे को दिए वो मुझे पसंद नहीं आए. दे वर इनकरेक्ट and too generic in a lot of places. So this is not going to be an AI generated response. This is how I teach, how we have been teaching. So very specific in that respect. Okay. So let's start with the deep dive. What I have over here is that, can you see the entire screen, or is my this Zoom thing blocking it? It is blocking it? No, it's not blocking. ठीक है. ठीक है. So then just yeah. So what you have over here एक थोड़ा सा ब्रीफ है बिफोर आई गेट डीप इनटू इट. ये जो तीन एग्जाम है वो एक प्रेपरेशन यूनिवर्स में हम इनको कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज देर इज अ कोर दैट इज कॉमन टू ऑल ऑफ दीज. ऑलराइट. सो व्हाट वी हैव इज कि ये जो यूपीएससी है उसमें जो इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाला पार्ट है उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2. सो दिस ऑल थिंग कम्स इन द मेंस. इन द प्रिलिम्स यू डू नॉट हैव एन इकोनॉमिक स्पेसिफिक. सो जो भी ऑप्शनल का स्पेशलाइजेशन होता है दैट ओनली कम्स अप when we have the mains wala portion, right? So prelims is common for everyone. Mains mein the GS papers and the ethics and essay is common to everyone. Optional paper 1 and 2 is specific, right? ये 250 के होते हैं each, so the total marks is 500.
and this is 500 out of 750, so ये around 29%, 30% ये इसका स्कोर बनता है, ठीक है. So optional choice is again very specific, very important. So the total score will be 500. It will only be long form, लंबे वाले आंसर्स लिखने होते हैं. There is no quant. So UPSC में कोई भी मैथ वाला पोर्शन नहीं आता है, right? So you will have questions, for example, थोड़ा बहुत कंज्यूमर थ्योरी एंड ISLM का क्वेश्चन, या फिर ASAD मेनली AD वाला क्वेश्चन जो सिंपल केनेजियन मॉडल होता है, या फिर वो कई बार मनी मल्टीप्लायर वाला क्वेश्चन पूछ लेता है. दैट इज द एक्सटेंट ऑफ क्वांट. सो यू डू नॉट हैव anything related to math methods, anything related to econometrics, anything related to statistics. ये सारी चीजें इसमें नहीं होती हैं, ठीक है. I'll get into the details of 1 and 2 in the coming slides. इसमें जो पेपर 2 होता है, that is Indian economy. And in this Indian economy, out of these 3 exams, okay, I'll come to the last column towards the end once I've discussed the other. IES में इकोनॉमिक्स के 4 पेपर्स होते हैं, ठीक है. इसके अलावा IES एक्चुअली अभी चल रहा है, टुडे इज द सेकेंड डे. सो ऑन द फर्स्ट डे यू हैव इंग्लिश एंड यू हैव GS, जनरल स्टडीज, ठीक है. वो 100 नंबर के दोनों पेपर्स होते हैं, which is non-economics. And then on day 2, which was today, you have GE1, which is General Economics 1 and General Economics 2. ठीक है. ये GE1 और GE2 होता है day 2 पे. And then you have GE3 and GE4. ये जो Indian Economics है ना, ये है GE4, right? So they call it GE4 या Indian Economy, कुछ भी बोल सकता है. GE3 and GE4 is your day 3, right? All of these individually are of 200 marks each. So that is why your total comes on to 800, right? Again, IES में जो IES के पूरे एग्जाम में लॉन्ग फॉर्म ही होता है. There is no MCQ based component. So in UPSC also the MCQ based component is prelims. लेकिन जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ने की बात करते हैं तब हम सिर्फ लॉन्ग फॉर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है. डिस्क्रिप्टिव आंसर्स. Finally, you have, and this does have quant, right? So GE1 will have a lot of quant. It will have stats, it will have econometrics, it will have principal component analysis, it will have math methods, it will have some, if required, कई बार वो क्या नाम है, इंडेक्स नंबर्स तो पूछते हैं, रिग्रेशन, रिवर्स रिग्रेशन भी पूछ लेते हैं, all these kinds of things. So half of the paper is quant, GE1, ठीक है. Then RBI grade B जो DPR वाला होता है, that has 3 phases, right? So इसमें भी IES में भी 2 phases हैं. The second phase is actually the interview viva voice जो है, जो कि UPSC में भी है. But हाँ, so interview is common in all 3. First MCQ based economics exam सिर्फ RBI में होता है, which just happened. तो अभी 14 तारीख को 14 तारीख को संडे को इसका एग्जाम था. नाउ द फेज 2 विच इज गोइंग टू बी लॉन्ग फॉर्म, वो अभी 26 जुलाई को इसका एग्जाम है, राइट. सो द टाइमलाइन वाज अ बिट मेस्ड अप. यूजुअली आरबीआई का एग्जाम फेज 1 यूज्ड टू बी अराउंड सितंबर एंड देन फेज 2 इन अक्टूबर. इस साल इन्होंने नोटिस पहले निकाल दिया एंड विद इन a month, within 45 or 40 days, the exam was scheduled. So that tells you that you have to be prepared with MCQ type practice as well, along with the syllabus. All right. So इसमें phase 1 is MCQ. Phase 2 has 2 papers, paper 1 and paper 2, or each of these papers is for 200 marks. ठीक है. So phase 1 के बाद phase 2 is only long form, and then you have phase 3, which is viva voice. ठीक है. तो ये the only exam that has economics based MCQ, which is this one. Abhi, what I have written over here is some things that are unique to these exams. Economic history, मतलब प्री इंडिपेंडेंस जो इकोनॉमिक हिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शन में आता है, बाकी इन दोनों में से किसी में नहीं आता है. IES में they do give good weightage to the schools of economic thought. तो ये फिजियोक्रेट से शुरू करके, इफ यू हैव स्टडीड यू नो इट, इफ यू हैव नॉट स्टडीड देन यू विल गेट टू इट. सो इकोनॉमिक थॉट कैसे इवॉल्व हुआ, वो इनका अच्छा उस पर वेटेज होता है, राइट. सो नन ऑफ द अदर्स गिव दैट मच इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक थॉट. RBI is the only one that has these advanced topics in econometrics, right? So it is the only one that has some Bayesian econometrics. Panel data सिर्फ यही पूछता है.
और ये AIML एप्लीकेशंस भी अभी कुछ कुछ ये लोग पूछने लग गए हैं. दिस इज यूनिक टू दिस. Okay, so RBI is going to ask you a lot of things that are monetary policy, more specific to monetary policy, क्योंकि भाई RBI का एग्जाम है. और कुछ एडवांस्ड इकोनोमेट्रिक्स, बेजियन एंड पैनल एज वेल. ठीक है. सो दिस इज द ओवरऑल. नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड विथ कि एक्चुअल किसका सिलेबस क्या है. यू डोंट हैव टू वरी, ये पूरा जो फाइल है ना मैं इसको डाल दूंगी. तो आई शेयर इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप दैट आई हैव क्रिएटेड, एंड वंस आई पुट इट ऑन यूट्यूब तो भी वहां पे आई विल पुट अ लिंक. सो यू विल हैव ऑल दिस, प्लस आई विल ऑल्सो टेल यू कि ये पूरा चीज कहाँ से तुम डाउनलोड कर सकते हो. वी ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ lesson plan that we have prepared, that we use every year. You can just take that. हाँ, so इसको बस अभी समझने के लिए वो करो. डोंट हैव टू वरी टू मच कि बहुत सारा चीजें लिखा है, एंड नॉट टू ओवरवेल्म. जस्ट टू गिव यू अ वेरी सॉर्ट ऑफ डिटेल्ड इंसाइट कि सिलेबस कैसा दिखता है. ठीक है. Does that mean RBI will happen in June from now on? We don't know. No one knows in this country. But we can expect कि definitely अब प्रीपोन वो रहेगा. ठीक है. तो ये है. बट ये कब क्या अनाउंस कर दें ये तो यही जानते हैं. हमको सिर्फ ये पता है कि हमको मार्च तक अपना प्रेपरेशन सॉलिड कर लेना है. सिलेबस, अगर सपोज माय टारगेट इज टू सिट सीरियसली फॉर IES एंड RBI, सपोज मेरे को 2027 में मेरे को इन दोनों एग्जाम्स के लिए सीरियसली बैठना है, तो मार्च तक मेरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए. एंड आफ्टर दैट आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि अब मेरे को प्रैक्टिस करना है. MCQ बेस्ड उधर, रिटन इधर. रिटन जो IES के लिए प्रैक्टिस करोगे दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर RBI लॉन्ग फॉर्म एज वेल. ठीक है. सो वी नेवर नो फॉर श्योर, बट येस दिस इज डेफिनेटली एन इंडिकेशन कि दीज पीपल आर ट्राइंग टू करेक्ट सम सॉर्ट ऑफ द डिले दैट वाज हैपनिंग. तो वो डिले वो करेक्ट करने के लिए इन्होंने वो काफी जबरदस्त ही पहले ही करेक्शन कर दिया. तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ अभी इसी टाइम के अराउंड नेक्स्ट ईयर से होगा. बट वी कैन ओनली एक्सपेक्ट, वी कैन नॉट बी श्योर. ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स टॉक पेपर 1. पेपर 1 जो है ऑप्शनल में इज एंटायर थ्योरी, इकोनॉमिक थ्योरी. So what the way I divide it is that when I say theory, then I'm talking about everything which does not have any real data. ठीक है. सो जब तक हम बिना डेटा के थ्योरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, सपोज हम पब्लिक इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं. अब पब्लिक इकोनॉमिक्स में अगर हम ये पढ़ते हैं, इफ इन पब्लिक इकोनॉमिक्स वी स्टडी दी FRBM, द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट ऑफ इंडिया, राइट, दैट इज स्टिल पब्लिक इकोनॉमिक्स, बट दैट इज व्हाट हैपेंस इन द रियल वर्ल्ड. वो इंडिया की रियलिटी है. देन वी ग्रुप इट इनटू इंडियन इकोनॉमी. है वो पब्लिक इकोनॉमिक्स की बात ही है ना, क्योंकि हम बात कर रहे हैं बजट की, हम बात कर रहे हैं फिस्कल डिसिप्लिन की, फिस्कल कंसोलिडेशन की, पब्लिक एक्सपेंडिचर की. स्टिल FRBM is part of Indian economy. So similarly, whenever we talk about anything theory related, जिसका की मॉडल है, जिसका की इक्वेशंस है, जिसका डेटा तक नहीं पहुंचा है, that is your theory. एंड ऑप्शनल का पेपर 1 is theory. ठीक है. सो पेपर 1 के थ्योरी में माइक्रो, पूरी माइक्रो, ये बेसिकली ऑप्शनल तुम्हारा पूरा अंडर ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स का सिलेबस है. ठीक है. सो यू हैव माइक्रो स्टार्टिंग फ्रॉम योर कार्डिनल, ऑर्डिनल, राइट, क्या नाम है, रिवील्ड प्रेफरेंस, देन यू हैव योर सरप्लस, स्लट्स की थ्योरम, द क्या नाम है, डिकॉम्पोजिशन, राइट, duality. So duality is actually, this is a mistake. Duality is not मैथमेटिकल तरीके से ऑप्शनल नहीं पूछता है. सो डुअलिटी विल बी अ पार्ट ऑफ IES एंड RBI. ठीक है. हाँ. सो देन once consumer theory is done, then you get production में भी returns to scale. जो भी ये duality math वाला ज्यादा है, ये IES का है. this is I will correct it and put it. So production function में you have to get your cost functions, cost minimization, ISO quants, profit maximization, all those things. Then very important for optional is your market structures. So market structure का जो पूरा spectrum है from perfect competition से वो कैसे कैसे कंपटीशन रिड्यूस होते जाता है, फॉर्म्स का नंबर रिड्यूस होते जाता है, मार्केट पावर बढ़ती जाती है, ऑल द वे टिल मोनोपोली.
right? So market structure is very important component for optional, for actually others also. So perfect competition से लेके monopoly तक, बीच में you have monopolistic competition and you have oligopoly. Oligopoly से related थोड़ा बहुत गेम थ्योरी ये लोग पूछते हैं. So oligopoly के जो मॉडल्स हैं, especially Kuno, Bertrand, Stackelberg और वो collusive model Chamberlain वाला. So all of these two involve, because when we are talking about oligopoly, we are talking about strategic interaction. ठीक है. So गेम थ्योरी का मतलब ही यही है कि हम सामने वाले को एक what do you say, ऐसा पैसिव प्लेयर की तरह नहीं ट्रीट कर रहे हैं, राइट? सो व्हेनेवर यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, तुम ये अज्यूम करते हो कि बाकी सारे लोग अपना जो भी कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट तरीके से कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट गोइंग टू बिहेव योर वे. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द केस कि इफ आई डू दिस, सामने वाला कुछ कर सकता है, उसका रिएक्शन कुछ ऐसा हो सकता है. When you take that reaction into account, then your decision and action becomes strategic. ठीक है. सो वो चीज प्ले में आती है व्हेन वी टॉक अबाउट द मार्केट स्ट्रक्चर वेयर यू हैव फ्यू प्लेयर्स. तो जब दो चार ही प्लेयर्स हैं और वो बहुत ही मार्केट पावर उनका है बढ़िया, देन वी आर इन द रेलम ऑफ अ बिट ऑफ गेम थ्योरी. गेम थ्योरी ऑप्शनल में बहुत हैवी नहीं आती है, इंडिपेंडेंट ऑफ इटसेल्फ ज्यादा नहीं आती है. Then you have stability, equilibrium stability concepts. Again, important Marshallian and Walrasian stability. You have some distribution concepts, basically Ricardo or Kalecki or Kaldor, ये important रहते हैं. Then general equilibrium, exchange, production, plus welfare economics. ठीक है. So this is the entire spectrum of micro that is there in optional. The only thing is that जिस तरीके से if you have seen variant, तो variant does have numericals और उसमें क्या बोलते हैं utility functions होंगे, उसमें cost functions होंगे. वो सारे जो मैथ वाली चीजें हैं वो इधर नहीं इंक्लूड होती हैं. बाकी concept wise it will be in depth, it will be challenging you, right? So it will challenge you कि वो रट के नहीं आप बता सकते, आपको अप्लाई करना हो. ठीक है. That is your micro. Then you come to macro. इसमें basically it has from macro till growth. तो macro में क्या क्या चीजें हैं? All the macro models, right? So you have your starting from classical, then you have Keynesian. Keynesian जो basic Keynesian है, जो simple Keynesian है, then you have ISLM, then you have neoclassical. ठीक है. उसके बाद फिर जब ये सब कांड हो जाता है, फिर monetarism भी, फिर न्यू क्लासिकल भी, फिर न्यू Keynesian. तो ये पूरा स्पेक्ट्रम starting from classical all the way till new classical. What is the relationship? How are expectations, evolving? The theory of expectation that evolves along with it. The actual context जिसके वजह से ये सारे सारे theories आते गए आते गए आते गए. How does one theory differ from other? Pros and cons क्या है? सबका diagram, सबका वो. तो मैक्रोपेडिया इसमें हैवी रहता है. प्लस यू विल हैव सम कोई ना कोई एक आध न्यूमेरिकल ISLM पे या तो आ जाता है, या फिर AD वाला सिंपल Keynesian मॉडल मल्टीप्लायर एंड समथिंग कहता है. ओके. देन यू गेट टू मनी एंड बैंकिंग. मनी एंड बैंकिंग का मेन फोकस होता है कि मनी डिमांड के थ्योरीज क्या हैं और मनी सप्लाई इंक्लूडिंग मनी मल्टीप्लायर. ठीक है. सो ऑल दीज टू थिंग्स. मॉनेटरी पॉलिसी पे भी क्वेश्चंस आते हैं, कम आते हैं लेकिन आते हैं. ठीक है. सो यू नीड द मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स एंड how does monetary policy play, and the limitation that you cannot affect two outcome variables with single instrument. ये सारी basic चीजें. Then public economics में you start with public goods, which are classic case of market failure. फिर market failure के और चीजें करते हो, externalities. Then you do so externalities में positive negative उनको थोड़ा correction करने का वो देखते हो. Then you move to taxation and then public debt and public expenditure. ठीक है. वो यहाँ पे मिस हो गया. I'll add that. So public debt as well as public expenditure. Again from the theory side. So public एक्सपेंडिचर की क्या थ्योरीज हैं, पब्लिक डेट कब सस्टेनेबल होगा उसकी क्या थ्योरीज हैं, राइट? थ्योरी, नथिंग अबाउट व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द इंडियन इकोनॉमी और एनीवेयर एल्स. ओके. देन ट्रेड का आते हैं. ट्रेड के बेसिकली यू विल हैव टू कंपोनेंट्स नहीं, मतलब यू कैन थिंक ऑफ दैट अंडरग्रेड में तुमने जो ट्रेड किया होगा, यू डू ट्रेड मॉडल्स.
So you start with your absolute advantage. Actually, स्मिथ का पहले शुरू करेंगे, absolute advantage, then comparative advantage, then your Heck-Shorolin model, और उसके बाद जो new trade theories है। ये होने के बाद then we move to open economy macro economics, जहां पे हम ISLM मॉडल में ही इनकॉर्पोरेट करते हैं कि भाई अब now this economy is open. So what happens to the simple Keynesian multiplier? What happens to the ISLM model? So you have your Mundell-Fleming over here, and you have your income adjustment and price adjustment and all these things. This is your open economy macroeconomics. You also need knowledge on WTO के ये सब जो चीजें हैं, ये कभी कभार ये लोग ना पेपर वन में भी पूछ लेते हैं, विच इज समथिंग दैट इज अ रियल वर्ल्ड थिंग, बट ये यहाँ पे थोड़ा सा एक्सेप्शन इनका रहता है, दे डू आस्क इट इन पेपर वन। देन व्हेन वी कम टू ग्रोथ मॉडल्स भी ऑलमोस्ट ऑल मेजर, देर आर सम विच आर मेन स्ट्रीम ग्रोथ मॉडल्स, जैसे ये हैराडोमर हो गया, सोलो हो गया, लुइस हो गया, एंड रोमर हो गया एंडोजेनस। सो यू स्टार्ट विद द बेसिक एंड देन यू मूव ऑन टू द एंडोजेनस वन, वहां पे रोमर से ज्यादा नहीं आता है, एंड उसके बाद यू गो इन टू दीज सॉर्ट ऑफ पैरेलल ग्रोथ थ्योरीज दैट आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिसिटीज ऑफ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है। तो इसमें तुम्हारा नर्क से हर्शमैन, बैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, रोडन रोजनस्टाइन, बिग पुश, ये सारे मॉडल्स इसमें आते हैं। ठीक है। फाइनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट वाला एंगल भी आता है, एंड द एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी एंगल इज गेटिंग मोर एंड मोर ट्रैक्शन इन द रिसेंट ईयर्स। इट इज स्टिल नॉट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स द वे वी डू इन IES एंड RBI, क्योंकि कोई भी एनवायरमेंट की थ्योरी नहीं आएगी, लेकिन more questions about environment Kuznets curve, questions about the um, um, conflict between growth and sustainability, these kinds of questions. All right, ये हुआ पेपर वन। नाउ इंडियन इकोनॉमी जो है, स्टिल टॉकिंग अबाउट ऑप्शनल, इंडियन इकोनॉमी में देर आर 3 phases, एंड 2 phases जो हैं वो तो स्टैटिक है, right? So one thing that bothers a lot of students doing optional इकोनॉमिक्स ऑप्शनल कि भाई इसमें बहुत ज्यादा करंट पार्ट है। ऑप्शनल वालों के लिए करंट का उतनी टेंशन नहीं है जितना कि IES और RBI वालों का। सो बिकॉज देर इज अ डेडिकेटेड अमाउंट ऑफ वेटेज गिवन टू प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमी, राइट, एंड प्री लिबरलाइजेशन एरा इकोनॉमी। सो ये दोनों चीजें तो अब भूतकाल में हो चुकी हैं, इनमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो ये हम जब समझ जाएंगे, पोस्ट लिबरलाइजेशन में भी will be the one that keeps will be needed to be updated. ठीक है। सो प्री इंडिपेंडेंस में क्या है, बेसिकली योर लैंड सिस्टम, राइट, एग्रीकल्चर, ड्रेन थ्योरी, और उनका मॉनेटरी पॉलिसी क्या था ब्रिटिश का, द लेज़े फेयर क्रिटिक, और ये जूट कॉटन रेलवेज, ये बहुत ही स्टैंडर्ड है। इसी से आता है कुछ फिक्स टाइप के क्वेश्चंस हैं। दिस इज अ वेरी स्टैटिक पोर्शन। गुड आंसर ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट, डिपेंडिंग है तुम्हारा डेप्थ ऑफ नॉलेज इसमें शोकेस हो सकता है, लेकिन ऐसी चीज है कि इतनी स्टेबल है, और क्योंकि इतने ही टॉपिक्स हैं तो वो घूम फिर के वही आते हैं, एंड दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये चीजें तो इसमें आने ही वाली है। ठीक है। सिमिलरली पोस्ट इंडिपेंडेंस में दीज आर द थिंग्स दैट कम, बेसिकली कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज 3-4 इकोनॉमिस्ट्स, मेनली ये 3 ही होते हैं, वाकिल, गाडगिल एंड BKR राव। इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं उसका भी बहुत ही स्टैंडर्ड एंड सॉर्ट ऑफ ऑलरेडी फिक्स्ड contributions हैं। then you have the reforms that have taken place, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, जो एग्रीकल्चर का कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, देन इंडस्ट्री वगैरह के ट्रेंड्स, एग्रीकल्चर के ट्रेंड, कैपिटल फॉर्मेशन का ट्रेंड, इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड, ऑल दीज। सो देयर विल बी नंबर्स, ऐसा नहीं है कि नंबर्स नहीं होंगे, लेकिन ये नंबर्स चेंज नहीं हो रहे होंगे क्योंकि ये सब हो चुके हैं। ठीक है ना। ओके, हाँ, एंड सेक्टोरल कॉम्पोजिशन, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, how that has evolved since independence and to the point that we are till here now. क्या पॉवर्टी के लिए मेजर्स किए गए, क्या इनइक्वालिटी के लिए मेजर्स किए गए, और PDS, राइट, योर नरेगा, और ये सारी चीजें इसमें आती हैं। देन वी कम टू द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा। इसमें भी वो सेम ही चीजें हैं, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एक्चुअली आर गोइंग टू बी अगेन वेरी स्टैटिक। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर और WTO का जो
टसल रहता है, मोस्ट ऑफ इट इज फिक्स्ड, राइट? सो यू नो कि इंडिया का क्या स्टैंड है, यू नो कि डब्ल्यूटीओ किस चीज में पुश करता है, एंड वंस दैट इज देयर ऑल यू नीड टू डू इज कि अगर कोई लेटेस्ट न्यूज आती है तो आप उसमें अपने नोट्स में अपडेट करें, ठीक है? आई टेल यू हाउ ऑल दिस इज डन, बट still in this a lot of things are not static, but it is not like uh, it will evolve every day. So these are the things that are there. You have some of the, so agriculture also related industry is very important for India. That is why they have good weightage. Then industry and trade, ये तीन चार sectors हैं. External sector उसके ऊपर, the public sector, government expenditure, government budget, all of these things related to monetary policy, things related to planning, all right? Then the social sector or the labor market. So you have employment, then poverty, rural wages. Now, उसके बाद तुम्हारा नरेगा, poverty alleviation schemes, all these. And recently they are also asking questions about the socio-economic indicators. अगर कोई human development report आई है, that should be updated in your notes. So yeah, this is your entire Indian economy. This part is completely static. 50 or say 30 to 40%, even 50% of this part is quite static. और बाकी चीजें you have to be updated in terms of the schemes, in terms of some of the new numbers and so on. Given कि आजकल तो हर दिन ही न्यूज में इतना ही बवाल ही मचा रहता है कि हर दिन लगता है कि अब कुछ अलग ही हो जाएगा, but you don't have to be that much concerned because a lot of that what we observe in news is actually fluff. है ना, बहुत कुछ होता है बट अंडरलाइन चीजें एक्चुअली काफी स्लो ही मूव करती हैं, तो वो है। प्लस नंबर्स जो है वो एग्जैक्ट नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेंड इंपॉर्टेंट होता है कि चीजें कैसे मूव कर रही हैं, राइट? ऑल ऑफ दिस अगेन कम्स विद प्रैक्टिस, कम्स विद टीचिंग, कम्स विद कि धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। All right. So this is a lot of detail about your economics optional. Now let's move to IES and the four papers that are there, right? Okay. GE1, ये है GE1 का, ये है GE2 का over here. So GE1, how you have to think about it is कि GE1 is all about the micro lens, ठीक है? So ये micro lens में तुम्हारा micro तो आता ही है, ये सारी सेम ही चीज है। इसमें चीजें जो additional है वो वही है कि the mathematical component. So you have your duality, you have your Shepard's lemma, calculation, compensation, demand. Production, maybe you have different production functions, uske numericals, uske derivations, all those things. You will also have some numericals in market, जैसे कि कूर्नो का equilibrium निकालना या ये सब Stackelberg का वो निकालना, these kinds of things. Monopoly का again numericals on monopoly, market differentiation and so on. Same syllabus, but in a bit more depth in terms of solving the math, solving the numericals. All right. Then within this you also have quantitative methods. So इसमें तुम्हारा सारा कुछ math का है. So you have your optimization, matrices, है ना, linear programming, duality, linear programming problems, input output models. इतना कुछ है नहीं, ये करने के लिए तुम्हें 3 क्लास लगेंगे, right? So it looks like a lot, but given the predictability in the kind of questions they ask, it is very very doable. Then stats में you have basics, इसके भी ऊपर इतने direct questions नहीं आते हैं। stats का mainly questions index numbers पे होता है, and these other things, basically hypotheses, testing and distributions, this is used in questions of econometrics. All right. This is your paper 1, which is essentially talking about the micro lens of things. So what you will see over here is that इसमें कुछ पब्लिक इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम पब्लिक इकोनॉमिक्स में जनरली करते हैं। कौन से? पब्लिक गुड्स और ये कोस्ट थ्योरम, पिगुवियन, ये सारे पब्लिक के वो पार्ट हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स के जो कि एसेंशियली माइक्रो लेंस है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट मार्केट फेलियर। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द जनरल इक्विलिब्रियम फ्रेमवर्क, जनरल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? कुछ सेट ऑफ अजम्पशंस होते हैं जिसके बेसिस पे दोज टू वेलफेयर थ्योरम्स होल्ड. So this public economics is essentially this part of public economics, the externality part, the asymmetric information, the market failure part is essentially a violation of that assumptions
ऑफ द वेलफेयर थ्योरम, इसीलिए उसका एक्सटेंशन के क्वेश्चंस जीई 1 में आते हैं। पूरा पब्लिक इकोनॉमी जीई 1 में नहीं आएगा। राइट, नाउ लेट्स मूव टू जीई 2। जीई 2 इज ऑल अबाउट द मैक्रो लेंस। सो इसमें तुम्हारा मैक्रो भी आएगा, इसमें तुम्हारा इंटरनेशनल भी आएगा, इंटरनेशनल थ्योरीज एज वेल एज इंटरनेशनल और ओपन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स ऑप्शनल में नहीं आता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑप्शन में नहीं आएगा, फाइनेंशियल मार्केट्स इधर आता है आईईएस में। सो यू हैव टू, दे हैव increasingly started asking questions about कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं, यूरोपियन ऑप्शंस और अमेरिकन ऑप्शन में क्या फर्क होता है, राइट। सो दे मेड इट मोर एंड मोर स्पेसिफिक, फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स में क्या फर्क है, all these kinds of things. So financial markets is becoming an important component. So you have macro, यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग भी आएगा, मैक्रो, मनी एंड बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो वो जो सारा ऑप्शनल का पेपर 1 में माइक्रो छोड़ के था, वो सारा इधर पेपर 2 में आता है। इसके अलावा द एक्स्ट्रा थिंग दैट इज ओवर हियर इज दिस स्कूल्स ऑफ थॉट, ठीक है। सो ये स्कूल्स ऑफ थॉट का आइडिया होना चाहिए, वो कई बार पूछते हैं कि इवोल्यूशन, कंपैरिजन, कॉन्टेक्स्ट, एवरीथिंग, ऑलराइट। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। नाउ लेट्स मूव टू जीई पेपर 3 एंड पेपर 4। पेपर 3 का लेंस है पॉलिसी थ्योरी, ठीक है, पॉलिसी थ्योरी। सो नॉट एक्चुअल पॉलिसी बट द थ्योरी अबाउट the policy that should be there in various scenarios. तो यहाँ पे then they have questions about कि public economics में जो पॉलिसी वाला है, पॉलिसी क्या होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, टैक्सेशन। दिस इज दैट कॉम्पोनेंट ऑफ पब्लिक इकोनॉमिक्स जहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। एंड उसके अलावा कहाँ पे पॉलिसी चाहिए, पॉलिसी चाहिए एनवायरमेंट में, राइट। तो एनवायरमेंट का वैल्यूएशन कैसे होगा, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे होगा, एनवायरमेंट में करेक्टिव पॉलिसीज कौन से होते हैं, कैप एंड ट्रेड होते हैं, कार्बन मार्केट्स होते हैं, राइट, कार्बन क्रेडिट्स होते हैं, ऑल दीज थिंग्स आर ओवर हियर। एंड अनदर थिंग, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स भी आता है इसमें। इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स इज बेसिकली पॉलिसी एंगल अबाउट इंडस्ट्री। सो देन यू हैव कि अगर मार्केट में मोनोपोली है तो क्या पॉलिसी, राइट, पब्लिक एंटरप्राइज और प्राइवेट एंटरप्राइज का फर्क है, व्हाट काइंड ऑफ, हाउ विल यू implement policy over there, what should be the pricing rule in these kinds of differences, right? This is the vision of GE3, theory about public policy or economic policy. You have all those things over here. फाइनली वी मूव टू इंडियन इकोनॉमिक्स जो है जीई 4। इंडियन इकोनॉमिक्स में भी सेम चीजें हैं, एक्स्ट्रा चीजें ये है कि ये ज्यादा आईईएस इज, अगेन देयर विल बी नो हिस्ट्री पार्ट ओवर हियर, मोस्ट ऑफ इट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड इन करंट। So IES is very heavily current biased. Of course, you need information, you need the entire context. कोई भी चीज बिना कॉन्टेक्स्ट के आप नहीं पढ़ सकते हैं, नॉट इन एग्जाम्स लाइक दिस। यू नीड द एंटायर कॉन्टेक्स्ट, यू नीड कि भाई कहाँ से ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू करके आज हम यहाँ पहुंचे हैं, उसका क्या इफेक्ट है, एंड देन व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट एवर ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, राइट, व्हाट इज द केस फॉर एंड अगेंस्ट सब्सिडीज। तो ये सब पूरा कॉन्टेक्स्ट लेकर यहाँ पहुंचना है, लेकिन जो सवाल आएंगे वो काफी रीसेंट उनका बेंड होगा। All right. Most of these questions, most of these topics are very similar to what you had in paper 2. You can do a point by point comparison. इस टाइम पे उसकी जरूरत नहीं है, जब करोगे तो वो एक एक करके कंपैरिजन अपने आप आ जाएगा। बट देर आर सम थिंग्स दैट आर एक्स्ट्रा ओवर योर, फॉर एग्जाम्पल अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेबर के ऊपर इनका रहता है क्वेश्चन, डेमोग्राफी के ऊपर रहता है, and these measurement indices. So you have WPI, CPI, इनका measurement, इनका trend, इनका pros and cons. These things are asked in more depth. क्योंकि IES is what? Indian Economic Service. You're going to be an economist under the government. Of course, you need more knowledge about the economy and in the current sense. All right. Okay. This is your IES. Now RBI के ऊपर आते हैं। आरबीआई में फेज 1 और फेज 2 रहेगा आपका। फेज 1 में भी यू विल सी के सिलेबस एग्जैक्टली सेम है, फर्क क्या है, ये एमसीक्यू है, ठीक है ना।
तो ये जो एग्जैक्टली सिलेबस है ये इंडियन इको का, सॉरी, आई ऑप्शनल का सिलेबस है विद, सो एक्चुअली ये आईईएस का सिलेबस है क्योंकि इसमें क्वांट भी है। तो ये आईईएस का सिलेबस है इन द एमसीक्यू अटायर। ठीक है। सो फेज वन विल हैव पेपर वन जो कि 100 मार्क्स का होगा। यू विल हैव 35 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क, 35 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। ठीक है। तो ये करके 100 नंबर का क्वेश्चन बनता है। उसके अलावा इंग्लिश भी होता है, विच इज द क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन एंड यू ऑल्सो टाइप, राइट। सो यहाँ पे टाइपिंग स्किल्स भी चाहिए तुम्हें। आरबीआई के लिए इंग्लिश एग्जाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई के लिए, आईईएस के लिए, दोनों के लिए ही, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर टॉकिंग अबाउट अ जॉब दैट रिक्वायर्स यू टू बी एबल टू एक्सप्रेस वट एवर यू हैव फाउंड। हाँ, सो तुम्हें बहुत कुछ पता है बट इफ योर थॉट्स आर स्कैटर्ड एंड यू आर नॉट एबल टू पुट इट प्रॉपरली, तो फिर तुम किसी काम के नहीं हो, या तुम एटलीस्ट ज्यादा काम के नहीं हो, है ना। सो दैट मीन्स दैट यू हैव टू बी ऑल्सो प्रिपेयर्ड टू बी एबल टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स। प्रिसाइज राइट, प्रेसिज राइट, प्रेसिजन राइटिंग होता है उसका, शॉर्ट प्रेसिज राइटिंग बोल देते हैं। प्रेसिज राइटिंग हुआ या फिर कॉम्प्रिहेंशन हुआ, ऐसे राइटिंग हुआ, ऑल दीज विल बी पार्ट ऑफ द एग्जाम। अच्छा, इन तीनों ही एग्जाम के लिए दिस इज रिटन फॉर दिस, देयर इज नो क्वालिफाइंग सॉर्ट ऑफ थिंग एक्सेप्ट फॉर सी सैट इन यूपीएससी। बाकी सबके नंबर ही काउंट होते हैं, सब फाइनल रैंक तक जाते हैं, है ना। सो सबके नंबर काउंट हो रहे हैं, प्रीलिम्स से लेकर या फेज वन से लेकर इंटरव्यू तक। ऑलराइट, फेज टू में यू हैव टू पेपर्स। पेपर वन जो है दैट इज द माइक्रो एंड मैक्रो मॉड्यूल। पेपर टू इज योर क्वांट एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। ठीक है। सो इन्होंने इन दोनों को इस टाइप से ग्रुपिंग की है। चारों का वेटेज इक्वल है। सो यू हैव 50 मार्क्स फॉर माइक्रो, 50 मार्क्स फॉर मैक्रो, 50 फॉर क्वांट एंड 50 फॉर इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल। ऑलराइट, सो ये सबका वेटेज सेम है। Micro may again same things, you see the same things, but the level will be closer to IES. You will have numericals, you will have derivations and all those things. Macro may be again the same thing, level closer to IES. In fact, जो recent questions आने लग गए ना, they are very application based. So they ask you a question about um, certain problem that is there in the Indian economy, और उसके बाद वो ये भी पूछेंगे कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का से एआई या what is the effect of the AI revolution on this and how can the monetary policy play a role in this, something like that. So they have gone very application based RBI in the last couple of years. Phase two, phase one was getting simpler and simpler and simpler, लेकिन इस साल उन्होंने फेज वन का पेपर ऐसा दिया है, एक्सक्यूज मी, इस साल उन्होंने फेज वन का पेपर काफी टफ कर दिया था। सो यू नेवर नो विद दीज एग्जाम्स, दे विल रिलैक्स यू और फिर वो ऐसा बॉम्ब फेंक देते हैं, बट syllabus सेम है। सो द लेवल एट विच दे आस्क क्वेश्चन इज गोइंग टू डिफर। देन पेपर टू में भी सिलेबस सेम है, दिस इज डिफरेंट, ये दोनों चीजें डिफरेंट है, बेजियन इकोनोमेट्रिक्स एंड AIML। नाउ ये दोनों के ऊपर बहुत एप्लीकेशन बेस नहीं आएगा, दिस विल बी conceptual that you have to have an idea कि ये चीजें क्या हैं। So they will not ask you, they may ask you कि भाई ये वाला particular regression model solve करने के लिए, but they will not ask you to solve a Bayesian model, they will ask you from a conceptual angle. And Indian economy is the same. The difference is कि Indian economy में monetary policy bend ज़्यादा रहेगा। All right. So this is your entire syllabus of the 3 exams. Before I ask you that if you have any clarificatory questions at this point, I will just show you this sort of Venn diagram. Sort of नहीं है, Venn diagram ही है। इसमें क्या overlaps हैं and what is specific to each exam, right? So you have, if you can see, micro, macro, public, international, growth, and some basic Indian economy. ये सबका common foundation है, it's the core. Okay. देन देर इज इको हिस्ट्री जो सिर्फ ऑप्शन वालों को करने की जरूरत है। देर इज डीप डाइव इनटू स्कूल्स ऑफ थॉट जो सिर्फ आईईएस वालों को करने की जरूरत है। आरबीआई में दे आर मोर कंसर्न अबाउट वेलफेयर स्कूल ऑफ थॉट, सो वो अमर्त्य सेन और कोज इनके ऊपर फोकस रहता है, विच विल एनीवेज वी विल कवर एज वी डू ऑल दिस।
आरबीआई का जो स्पेसिफिक है दैट इज योर बेसियन इकोनोमेट्रिक्स एंड एआईएमएल पैनल डेटा, ये चीजें इसके लिए स्पेसिफिक है. एंड देयर इज ऑल्सो एन ओवरलैप बिटवीन आईईएस एंड आरबीआई विच इज दैट बोथ विल हैव एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स, बोथ विल हैव क्वांट, राइट, बोथ विल हैव फाइनेंशियल मार्केट्स के ऊपर क्वेश्चंस एज वेल एज एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स. ठीक है, सो ये चार चीजें इन दोनों में कॉमन है. ये चीज सिर्फ इसके लिए स्पेसिफिक है. यू कैन थिंक ऑफ, यू कैन रिमेंबर दिस वेन डायग्राम टू थिंक अबाउट की व्हाट इज द ओवरलैप. ऑलराइट, सो आई ऑल्सो पुट इट ओवर हियर. अगर सिर्फ यूपीएससी के लिए कर रहे हो तो सिर्फ ये है, सिर्फ आईएएस के लिए करो तो ये एक्स्ट्रा करना है. आरबीआई ओनली नीड्स दिस एक्स्ट्रा, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज, फॉर ओनली दीज टू बट नॉट यूपीएससी, देन ये चीजें अपने एक्स्ट्रा करनी है. ऑलराइट, now, before I move to references, is there a question so far? ठीक है. Anyone else? समझ आ रहा है? Things are they clear? और एक चीज actually I should ask that clear? Okay. So given जो तुम लोगों के फॉर्म रिस्पॉन्सेज थे उससे मुझे ये समझ में आया कि all of you are either starting preparation or have been preparing for some time, right? So I assume कि ये सारी चीजें, ये सारे टर्म्स, ये सारे तुम familiar हो इनसे, और ऐसा नहीं है कि बहुत ही ओवरवेलमिंग लग रहा है कि भाई ये सारी क्या चीजें थी, क्या ऐसा तो नहीं है? हाँ, थोड़ा सा है. आई कैन सी योर फेस दैट देयर इज अ बिट. डोंट वरी, डोंट वरी, यू डोंट, नो वन विल आस्क यू टू मेमोराइज द सिलेबस. ठीक है, वो तुम्हें एवे ही याद हो जाएगा जब तुम तैयारी करोगे. तो अभी डोंट वरी अबाउट दैट. बट द रीजन आई शोड यू इज बिकॉज there are people in the audience who have been doing it, so फिर भी एक थोड़ा सा मेंटल मैप अच्छा रहता है. उसके अलावा द रीजन आई शोड यू कि मैं सिर्फ ये बोलूं कि माइक्रो मैक्रो का ओवरलैप है, दैट डजंट गिव यू एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, है ना? तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूजफुल रहेगी व्हेन यू कैन ऑल्सो डाउनलोड कर सकते हो इसको, और आगे चल के भी यू विल नो कि क्या क्या चीजें हैं. वैसे तो इनके नोटिस में भी आता है, जो एग्जाम का नोटिस आता है उसमें भी चीजें हैं, राइट? बट this kind of mental map is required because you will be, अगर तुम आरबीआई का अलग नोटिस देखोगे, यूपीएससी का अलग देखोगे, फिर आईईएस का अलग देखोगे, तो उसको कंपाइल करने में भी तो शक्ति खर्च होगी, राइट? सो इफ आई हैव ऑलरेडी डन इट, आई हैव जस्ट पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू. डोंट वरी, सिलेबस मेमोराइज करना कोई टास्क नहीं है. सिलेबस में जो जो चीजें हैं वो करना टास्क है. डोंट, उसको लेके ओवरवेल मत हो. आई कुड सी के कोई क्वेश्चन था. कोई क्वेश्चन था क्या? वेयर इज द चैट बॉक्स? हाँ, ओके, नो मैम, ठीक है, ठीक है आयुष. All right, so let's now proceed. I will show you the references that will also overwhelm you. फिर से मैं बोलूंगी, देखो दो तीन चीजें हो सकती हैं. एक चीज ये हो सकती है कि यू एनरोल विद इकोनीति. एक चीज ये हो सकती है कि तुम कहीं और एनरोल करो. तीसरी चीज ये हो सकती है कि तुम अपने आप प्रिपेयर करो, राइट? सो ऑल थ्री आर पॉसिबिलिटीज. एनीवेज दिस विल बी यूजफुल. सो व्हाट आई विल टेल यू इज कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से की जा सकती हैं. This is the reference list that I use, and जिस तरीके से मैंने हर टॉपिक के लिए अलग अलग चीजें उठाई हैं, वो इसीलिए उठाई हैं क्योंकि वो उस पर्टिकुलर बुक में अच्छे से समझाई गई हैं, फिर वो दूसरी बुक्स में कम अच्छे से समझाई गई हैं. ठीक है ना? तो ये उसका पर्पस है. अलग, मोस्टली द वे आई नो इज दैट जितने इंस्टीट्यूट्स हैं, राइट, दे टीच यू बाय नोट्स, नॉट व्हाट वी डू. आई विल कम टू दैट इन अ मिनट. लेकिन रेफरेंसेस जानना और रेफरेंसेस से पढ़ना बहुत जरूरी है, वेदर यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, वेदर यू आर टेकिंग अ कोचिंग, और वेदर यू आर डूइंग एनीथिंग एल्स. ठीक है, सो आई विल गिव यू अ लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस दैट मे ओवरवेलम यू. डोंट वरी, ठीक है ना? चिंता मत करो. All right. So ये subject wise references I have prepared. I have not gone into topic wise references, क्योंकि उसमें तो फिर you will get even more worried. But still subject wise references मैं दे रही हूँ इस point पे. If you want more detail, then you can of course reach out to me. तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना? माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए usually you will see that Varian is the top reference. लेकिन in my experience
starting with Kutsianis. So Kutsianis, the people on the bottom are the authors. Usually we refer to a book by the authors because the books का नाम सिमिलर ही होता है ना, मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी, उससे कोई सेंस नहीं बनता है। तो हम ऑथर्स के नाम से बुक को रेफर करते हैं। वी स्टार्ट विद कुत्सियानस बिकॉज अच्छा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड होता है, वेरियन का भी होता है। तो शुरू में कंज्यूमर थ्योरी, प्रोडक्शन थ्योरी तक ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। देन आहूजा एक, यू विल सी दैट फॉर दीज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, माइक्रो मैक्रो के लिए आहूजा, माइक्रो मैक्रो मनी के लिए आहूजा बहुत फेवरेट रहता है। आई डोंट नो किसका, बट रहता है, दिस इज द परसेप्शन। एंड इकोनोमेट्रिक्स के लिए गुजराती। ठीक है, ये तीनों ही, आई एम रिकॉर्डिंग, आई शुड नॉट से, बट द फैक्ट इज ये तीनों ही बेकार किताबें हैं। बेकार इसीलिए हैं क्योंकि दे आर ड्राई, राइट, दे आर ड्राई, दे विल थ्रो अ लॉट ऑफ थिंग्स एट यू एंड you will never understand. सो व्हेन आई वाज इन कॉलेज, कॉलेज के बाद फिर मास्टर्स और फिर उसमें अल्टीमेटली पीएचडी में पहुंच के मैंने वुलरिज उठाई, ठीक है, फॉर इकोनोमेट्रिक्स। उसके पहले तक, जब तक मैं अंडर ग्रेजुएशन में गुजराती से पढ़ती रही, मैं हमेशा से बुक से पढ़ती थी। मुझे कभी समझ ही नहीं आया कि ये हम कर क्या रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मतलब है, क्यों अचानक से इसने मेरे ऊपर 9 assumptions फेंक के मार दिए हैं क्लासिकल लिनियर मॉडल के नाम पे। क्या मतलब है इसका? सो इट्स नॉट दैट इट इज फैक्चुअली रॉन्ग, इट इज जस्ट दैट इट इज टू फैक्चुअल, इट्स टू ड्राई एंड इट डजंट मोटिवेट यू टूवर्ड्स द कॉन्टेक्स्ट। आहूजा बेटर दैट वे, सो आहूजा विल मोटिवेट यू, बट आहूजा पढ़ के तुम थक जाओगे, क्योंकि आहूजा को या तो पन्ने भरने थे, या फिर उनको वैसे बच्चे मिले थे जो कि a lot of kids, a lot of students actually like Ahuja, because what he does is he will keep on repeating the same thing multiple times. Now it may be the case that because I have studied economics all my life, तो मेरे को एक बार में चीज समझ में आ जाती है, दूसरा दोबारा बोलने पे I get irritated, and once you say 3-4 times, then I feel that you're wasting my time. Some kids actually prefer that. So Ahuja ko, the way I like to put it in the framework is there are certain topics जो सिर्फ आहूजा में है, इंक्लूडिंग माइक्रो, इंक्लूडिंग मैक्रो, कुछ मनी के टॉपिक्स। ठीक है, वो टॉपिक्स जो कि ये एग्जाम्स के फेवरेट होते हैं, ठीक है, वो इन सब फॉरेन बुक्स में नहीं है। आहूजा का दूसरा एडवांटेज है दैट इट गिव्स यू एन इंडियन एंगल। For some things specifically it talks about the Indian angle, which is very important क्योंकि all these exams will ask you to have that Indian angle. So Ahuja is good for reading and consolidating, right? So we will keep on Ahuja side by side. लेकिन Ahuja, सिर्फ Ahuja से पढ़ने पे बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा वो मटेरियल जो तुम प्रिपेयर करोगे। ठीक है ना? सो Ahuja को हम रखेंगे एज अ सपोर्टिंग मटेरियल फॉर दीज टू मेन रेफरेंसेस। देर आर सम थिंग्स दैट आर ओनली इन Ahuja, जब वैसा आएगा तो हम सिर्फ Ahuja करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। फाइनली निकोलसन स्नाइडर, ये सिर्फ माइक्रो, एडवांस माइक्रो वाले पार्ट्स के लिए है, द मैथ पार्ट्स, द प्रोडक्शन फंक्शन, द शेपर्ड्स लेमा एंड द डुअलिटी एंड कॉस्ट मिनिमाइजेशन, सिर्फ उसके लिए, नॉट रिक्वायर्ड फॉर ऑप्शनल एट ऑल, रिक्वायर्ड डेफिनेटली फॉर आईईएस एंड आरबीआई। ठीक है, ये हो गया माइक्रो। ये 4 किताबें माइक्रो के लिए काफी हैं, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। देन गेम थ्योरी, वाई हैव पुट गेम थ्योरी ओवर हियर इज क्योंकि थोड़ा बहुत गेम थ्योरी सब में है, ठीक है ना, ऑप्शनल में बहुत कम है, लेकिन थोड़ा बहुत गेम थ्योरी सब में है। सो गेम थ्योरी में देर इज सम अमाउंट ऑफ गेम थ्योरी विच इज इन वेरिएंट एनफ फॉर ऑप्शनल, लेकिन जो थोड़ी हायर लेवल की गेम थ्योरी आती है, यू विल नीड ऑसबॉर्न एंड वॉटसन, नॉट अ लॉट बट थोड़ा, और थोड़ा बहुत स्नाइडर, बट आई विल एक्चुअली आई शुड रीऑर्डर इट, आई विल डू इट। ये सबसे नीचे जाएगी, सो यू शुड हैव दीज रेफरेंसेस। अच्छा, इन सारे एग्जाम्स में और आईईएस एंड आरबीआई में the only games that are part of the syllabus are simultaneous games of complete information. So अगर कभी गेम थ्योरी पढ़ी है, गेम्स बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, they get more and more complex and realistic as you go ahead, but the most basic games are simultaneous games of complete information. ठीक है, so these are the games like
रॉक पेपर सीजर, ठीक है, तो प्रिजनर्स डिलेमा वाला गेम है। तो सिलेबस में यही है। उसके लिए ऑसबॉर्न के शुरू के 2-3 चैप्टर और वॉटसन का चैप्टर 6 आई बिलीव काफी है, ठीक है ना। वेरियन काफी है ऑप्शनल के लिए, वेरियन में जितनी गेम है। लेकिन पता नहीं क्यों पिछले साल आईईएस में दे आस्क्ड अ क्वेश्चन अबाउट सिग्नलिंग, अबाउट गेम्स दैट आर ऑफ द फोर्थ ऑर्डर। माय सजेशन ही नहीं, मतलब माय रिकमेंडेशन, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन इज दैट दीज क्वेश्चंस विल नेवर कम इन एज अ कंपल्सरी पॉइंट। वो कंपल्सरी क्वेश्चन में कभी नहीं आएंगे, ये ऐसा डाल देते हैं थोड़ा सा गूगली फेंकने के लिए। यू डू नॉट स्टडी एंटायर गेम थ्योरी टू कवर मैक्सिमम ऑफ 10 मार्क्स, ठीक है ना। सो जो सिलेबस में है उतना ही करेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन छोड़ देंगे, राइट। ओके, दिस इज गेम बेसिक। देन मैक्रो के लिए स्टार्ट विथ, सो मैक्रो में यू विल हैव नेशनल इनकम अकाउंटिंग एज वेल। वो शुरू करने के लिए आप एबल एंड बर्नाक्यूलर से शुरू करेंगे। इसको मैंने नंबर 4 पे रखा है क्योंकि ये सिर्फ उसी चीज के लिए काम आता है। देन यू विल स्टार्ट विथ फ्रॉयन। फ्रॉयन एक बाइबल किस्म की है फॉर मैक्रो बिकॉज इट हैज वंडरफुल स्टोरी टेलिंग। सो फ्रॉयन से पूरा जो कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग है वो करना है। ब्लैंचर्ड हम तब उठाएंगे जैसे ही हम लेबर मार्केट पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डीएफएस हम लेबर मार्केट और इसके कॉम्बिनेशन ब्लैंचर्ड और डीएफएस लेके चलते हैं, ठीक है। सम थिंग्स अगेन आर ओनली इन अहूजा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो गया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, कुछ कुछ स्पेसिफिक चीजें ओनली इन अहूजा, अगेन वी विल कीप इट फॉर सपोर्ट, राइट। ये जनरल फ्रेमवर्क है। शुरू नेशनल इनकम अकाउंटिंग इधर से करनी है। उसके बाद मेजर जो क्लासिकल और केनीजियन पोर्शन है वो इधर से करना है। उसके बाद जब हम लेबर मार्केट पे आते हैं, व्हेन वी गेट स्टार्टेड विद द एएसएडी वाला चीज, देन वी डू डीएफएस एंड ब्लैंचार्ड टुगेदर, ऑलराइट। ये जनरल फ्रेमवर्क है। देन मनी एंड बैंकिंग, इसकी जो बाइबल है वो है बे एंड जॉनसन। बे एंड जॉनसन की दिक्कत ये है कि इन्होंने ये किताब प्रिंट करना तो बहुत पहले ही बंद कर दिया था। देयर आर ऑल्सो नो कॉपीज अवेलेबल एक्सेप्ट फॉर वो जो स्कैंड पीडीएफ होते हैं। उसमें भी 15th चैप्टर के बाद मिसिंग है, सीधे 19th चैप्टर है। द गुड थिंग इज के वही चैप्टर्स रिक्वायर्ड हैं। आई थिंक वो मिसिंग भी इजीली है क्योंकि देयर इज नथिंग फ्रॉम 16th to 18th दैट इज रेलिवेंट फॉर पीपल इन इंडिया, इसीलिए वही चीजें अवेलेबल हैं। But you will have to work with the scanned copy. Bay and Jansen is sort of the Bible for money and banking. Financial markets के जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही करंट बेस्ड होते हैं एंड यूजुअली यू विल नॉट फाइंड देम इन टेक्स्ट बुक्स, बट you know I've created a lot of notes and all for that, so that thing will be there. I'll show you later. um, हाँ, उसके बाद कुछ चीजें फिर से सिर्फ आहूजा में है, उसको वैसे लेके चलना है। मॉनेटरी पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है इंडिया में, इट इज एन आर्टिकल बाय पमी दुआ। पमी दुआ हु वाज डायरेक्टर ऑफ डी स्कूल। तो अभी वो क्या कर रही है, शी इज नॉट इन द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी बट शी इज डूइंग समथिंग इन द गवर्नमेंट, आई एम फॉरगेटिंग। एनीवेज, सो पमी दुआ हैज अ वेरी नाइस आर्टिकल अबाउट व्हाट द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क इज इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट वो आर्टिकल है। क्वेश्चंस ऑन मॉनेटरी एग्रीगेट्स, वो सारा कम आता है ये रेड्डी रिपोर्ट से। एंड फाइनली जाधव। नाउ जाधव इज देयर बिकॉज इट इज एन ऑनररी मेंशन। जाधव पढ़ के कुछ भी नहीं समझ में आएगा। और जब इतना सारा पढ़ लोगे तो ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जाधव के मेंशन के बिना मनी एंड बैंकिंग का रेफरेंस कंप्लीट नहीं माना जाता है, इसीलिए वहां पर है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स के दो बढ़िया किताबें हैं, यू हैव रोजन एंड गेयर, राइट, एंड यू हैव स्टिग्लिट्स एंड रोजनगार्ड। वी विल कीप ऑन गोइंग बैक एंड फोर्थ ऑन दिस क्योंकि कुछ चीजें इधर बेहतर हैं, कुछ उधर बेहतर है, बट मोस्ट ऑफ इट इज कवर्ड बाय हियर। मसग्रेव एंड मसग्रेव हैज अ फ्यू थिंग्स दैट इज नॉट हियर एंड इट इज मोर ऑफ अगेन द ओजी मटेरियल, ठीक है। लेकिन इसका बिकॉज इट्स एन ओल्ड बुक, द लैंग्वेज इज नॉट वेरी फ्रेंडली। These are better books, better as textbooks. We will mostly, Rosengard or Gear, Stiglitz and Rosengard.
बेहतर किताबें हैं, बेटर एक्सप्लेनेशन, बेटर इंट्यूशन, बेटर एग्जाम्पल एंड एवरीथिंग. सम थिंग्स दैट आर मिसिंग विल यूज मस्ग्रेव एंड मस्ग्रेव, उसके साथ साथ में लेके चलना चाहिए. देन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का बाइबल है सैल्वाटोर. सैल्वाटोर एंड टू एंड, काइंड ऑफ एंड टू एंड पढ़ना है. सब चीजें उधर ही हैं, सिर्फ एक क्रूगमैन मॉडल है जो इस किताब में आता है, बाकी सब कुछ सैल्वाटोर में है. ठीक है ना. सो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स इज सैल्वाटोर. गुड बुक. आई डू नॉट लाइक अ बिट उसका फ्लो समवेयर इन बिटवीन, but that can be managed. Huh? So it's a good book, good flow, good explanation, um, covers everything required for international. Except for, of course, जो वो international bodies हो गए, WTO हो गए, वो सब की चीजें अलग से उसके notes रहते हैं. Growth and development, you will have three main books depending on कौन सा मॉडल कर रहे हैं. we'll start with थर्लवाल और स्मिथ. इन दोनों में बैक एंड फोर्थ चलता है. देन मैनक्यू से सोलो मॉडल काफी अच्छा है. मैनक्यू ऑल्सो हैज गुड रोमर मॉडल. देबराज डे एंड झिंगन, ये दोनों थोड़े से वो जो पैरेलल मॉडल्स हैं उनके लिए बेहतर है. एंड द पैरेलल मॉडल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन टोडारो एंड स्मिथ एंड थर्लवाल. सो ऑल ऑफ दीज, a combination of all of these are references for. So ManQ is the best for solo, right? So ये सारे models growth and development में ये 5 किताब लगती है. झिंगन जो है, again is the kind of book that has a lot of things, has a few things actually, which is not anywhere else, and इस एग्जाम में, ये सारे एग्जाम से पूछा जाता है. तो झिंगन को साथ में रखना है. कोई चीज अगर कहीं और नहीं मिल रही है तो झिंगन में मिलेगी. हाँ, लेकिन झिंगन को प्राइमरी सोर्स नहीं बनाना है. अनफॉर्चुनेटली वेर एवर यू सी इंडियन ऑथर्स, उनको थोड़ा सपोर्टिंग ही लेके चलना है, नॉट एज प्राइमरी सोर्सेज, नॉट वेरी इंट्यूटिव, राइट? एक्सेप्ट फॉर रे. रे इज अ गुड बुक एंड इट्स अ वेरी बिटी बुक एज वेल. ऑलराइट, ओके. देन फॉर क्वांट मैथ के लिए वही सिक्सेडर हेमंड है ना, और थोड़ी बहुत चियांग. इकोनोमेट्रिक्स में, सॉरी दिस इज मिस्टेक, इकोनोमेट्रिक्स में वुलरिज और गुजराती करनी है, ये पोर्टर नहीं करनी है. सो वुलरिज एंड गुजराती. एंड स्टैट्स के लिए देर इज अनदर बुक दैट, एक तो डेवोर हो गई एंड देर इज अनदर बुक, आई विल करेक्ट इट. स्टैट्स के लिए डेवोर एंड अनदर बुक कॉल्ड ब्लित्स्टाइन हुआंग. लेकिन ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है. स्टैट्स वैसे भी बहुत बेसिक आता है, सो यू विल कवर अ लॉट ऑफ स्टैट्स बाय जस्ट लुकिंग एट दी अपेंडिक्स ऑफ वुलरिज. जितना रिक्वायर्ड होता है वो यहाँ से कवर हो जाता है. कुछ और चाहिए तो डेवोर इज अ गुड रेफरेंस टू गो टू. या, एंड वुलरिज विल टेक केयर ऑफ योर क्रॉस सेक्शनल. टाइम सीरीज जो है वो गुजराती से बेहतर होती है. वुलरिज हैज अ डिफरेंट फोकस इन टर्म्स ऑफ टाइम सीरीज. फाइनली इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी में उमा कपिला की 2 किताबें हैं, राइट? उमा कपिला हैज ए इंडियन इकोनॉमी सिंस इंडिपेंडेंस. अनदर वन इज परफॉर्मेंस एंड पॉलिसीज. एंड देन यू हैव मिश्रा एंड पुरी. मिश्रा एंड पुरी की बातें ज्यादा सुनी होंगी तुमने, especially in government competitive exams. It's a good book, I would say. It does compile things in a good way and does cover. So अगर पिछले साल कुछ पूछा गया ना, तो मिश्रा एंड पुरी के नेक्स्ट एडिशन में वो चीज डेफिनेटली कवर हो जाती है. So that is a very good thing about this book. Uma Kapila is more about a bigger picture kind of thing. लेकिन कुछ चीजें जो पर्सपेक्टिव की बातें हैं, विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर IES, RBI एंड लॉट ऑफ टाइम्स फॉर ऑप्शनल ऑल्सो. A lot of things about perspective become clearer from Uma Kapila. So a combination again of these three. और इसके अलावा of course you have the budget and the economics, है ना. सो वो हर साल तो उसको अपडेट करना ही करना है. बाकी इंडियन इकोनॉमी इन चीजों से है. IES के लिए स्पेसिफिकली यू ऑल्सो नीड टू कीप एन आई ऑन द स्कीम्स, जो फ्लैगशिप स्कीम्स आती रहती हैं, उसके लिए PIB. सो आई, मतलब न्यूज़पेपर के साथ तो पहले ही दोस्ती कर लेनी है. शुरू में, इफ यू हैव नॉट स्टडीड, इफ यू हैव नॉट रेड न्यूज़पेपर एवर, यू विल टेक आवर एंड हाफ से 2 घंटे शुरू में लग जाते हैं अखबार पढ़ने में. उसको कम करके हमको 35 to 40 मिनट्स तक लाना होता है. वो प्रैक्टिस चाहिए. स्किम करना, काम की चीजें उठाना, पहले 2-3 पेजेस के गॉसिप में ना फंस जाना. द बेस्ट वे टू एक्चुअली इज टू ओपन फ्रॉम द बैक
हाँ, तो जब तुम इकोनॉमी वाला पेज खोल लो, जब तुम फिर एक्सप्लेन्ड पेज खोल लो, फिर एडिटोरियल खोल लो, राइट? सो वर्ल्ड वाला खोल लो, एंड देन अगर वक्त बच रहा है कुछ गॉसिप सुननी है, देन यू गो टू द फ्रंट पेज. सो best way to read newspaper is not to get stuck into the drama that happens. All right, but you have to read the newspaper क्योंकि अगेन जो वो पिक्चर बननी है ना दिमाग में, वो पिक्चर बनना शुरू होनी चाहिए. एंड यू विल नॉट गेट दैट पिक्चर फ्रॉम द फर्स्ट वीक ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर, लेकिन वो पहले महीने में जब पढ़ोगे वो चीज आने लग जाएगी. ठीक है? All right. Now, so this is all about the references. Now let's move to the timelines. I've prepared a rough timeline. कि किस चीज को करने में कितना टाइम लगता है. Some of you also had questions about the timeline. Also had questions about doing it with a job. उसको मैं specifically answer करूंगी last में. But let's just look at the timeline that we follow here, or which is also followed in other places. Roughly यही timeline follow होता है. All right. Sorry. Huh. So what I've done is I've divided it into two parts. If you are a fresh starter, usually you will start from July. July is when our batches also start and other institutes also start. So मैं एक मोटा मोटा सबका ही प्लान दे रही हूँ. यही प्लान चलता है. खुद से पढ़ना है तो भी ऐसा ही कुछ फॉलो करना होगा. What we do at Econiti is because we have a very specific lesson plan already prepared. तो हम उसको काफी हद तक फॉलो करने की कोशिश करते हैं. Of course, it is subject to the particular batch that you have. लेकिन this plan is roughly followed. Right? So you will start with micro, और ये इसी ऑर्डर में चलना है. इस ऑर्डर में इसीलिए भी चलना है क्योंकि इकोनॉमिक्स इसी ऑर्डर में पढ़नी चाहिए. You cannot start reading macro unless you understand micro and the limitations of where micro stops being relevant, and then you need macro. Right? So a lot of times what happens is कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स में मैंने देखा है, मेरे को समझ नहीं आया क्यों. क्योंकि वो लोग ना कई बार दे विल एनरोल यू इन अ बैच दैट स्टार्ट्स यू विद इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि यू आर एनरोलिंग लेट, तो वो इंडियन इकोनॉमी के बैच में एनरोल कर देते हैं. अगर ऐसा कभी दिखता है और अगर तुम्हारा ये बेस स्ट्रांग नहीं है तो मत करना, वहाँ फंस जाओगे, है ना? तो सीधे इंडियन इकोनॉमी आप नहीं पढ़ सकते, क्योंकि पढ़ तो सकते हो लेकिन ये सब चीजों में रिक्वायरमेंट क्या होती है. हाउ डू यू राइट अ गुड आंसर? यू राइट अ गुड आंसर व्हेन यू आर एबल टू कनेक्ट theory with real world, and you are able to see a real world policy in terms of the underlying theory. ठीक, तो उसको पढ़ने का जो ऑर्डर है वो यही सही ऑर्डर है. ये मेरा रेकमेंड, ऑफ कोर्स यू कैन डू व्हाट यू वांट, बट जस्ट अ पीस ऑफ एडवाइस दैट whether you are studying yourself or whether you're enrolling anywhere, just see that this is the rough order. They build foundation before they move to application, right? So we start with micro, then macro, मनी बैंकिंग, ये रफली ऐसे चलता है. और यहाँ तक आते आते वी विल बी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा मोस्टली दिसंबर या जनवरी फर्स्ट सेकेंड वीक तक फिनिश हो जाता है. देन वी गेट टू इंडियन इकोनॉमी विच यूजुअली गोज टू जनवरी एंड और फेब्रुवरी फर्स्ट वीक, यूजुअली वहां पे खत्म हो जाता है. यहाँ तक आते आते ऑप्शनल वालों का सिलेबस खत्म हो जाता है, एंड वट एवर इज दी ओवरलैप that is finished. So what I do is, and usually what happens in other places also, ये तीनों चीजें साथ में चलती हैं because of this overlap that exists. So till this overlap, all three things are done together. उसके बाद वैसे भी जो जनवरी से जो प्रीलिम्स, जो ऑप्शनल वाले बच्चे होते हैं वो प्रीलिम्स के प्रेपरेशन में लग जाते हैं. So they will leave you in January maximum. They'll stick around till February. From February, they are seriously into prelims preparation. And then we continue with the extra topics जो सिर्फ IES RBI वालों को चाहिए, which is your quantitative economics and environmental economics. So the aim usually is that you finish by March, and then if you're targeting your first attempt in June, तो दोनों एग्जाम्स जून में है, तो अगर जून में अटेम्प्ट है तो वहां से तुम्हारा रिविजन प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, MCQ प्रैक्टिस, वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी. सो यू आर एबल टू सिट फॉर अ ट्रायल अटेम्प्ट इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, एंड दैट इज वेरी मच रिकमेंडेड कि एक ट्रायल अटेम्प्ट, एक बुक पिच इंस्पेक्शन वाला अटेम्प्ट दो. क्योंकि कई बार जो मेरा एक्सपीरियंस है कि ऐसे बच्चे बोलते हैं कि हम लोग मतलब वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, नॉट प्रिपेयर्ड इनफ, तो हम अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना चाहते. देखो,
most of the students are not going to sit for all the attempts. 7-8 attempt कोई नहीं दे रहा. So enough attempts हैं. Mostly you are going to give it 2 to 3 attempts, right? So then do use your first attempt even if you are underprepared, because it will first of all, जो एग्जाम का डर होता है ना, वो रिमूव करेगा. दूसरा, तुम्हें पता होगा कि एग्जाम हॉल में बैठ के और वो जो 3 घंटे बैठना होता है और वो जो मेंटल प्रेपरेशन चाहिए, यू विल ऑलरेडी बी एक्सपोज टू दैट, right? And plus, you do not want your serious attempt to be your first ever attempt. So if you're suppose next year is your uh, अगर मान लो कि तुम जुलाई से शुरू करते हो, by the time you get to March you will be done, और तुम्हें लग रहा है कि नहीं अभी तो मेरे को अपना सीरियस अटेम्प्ट नहीं देना है, सीरियस अटेम्प्ट तुमने 2028 में देना है, तो 2028 वाले अटेम्प्ट पे अपना फर्स्ट ट्रायल तो मत दो. यूज दिस अटेम्प्ट टू बी योर पिच इंस्पेक्शन, right? So once you get that out of the way, you will be in a much more confident position कि जो serious attempt है उसको तुम जाके लिखो. ठीक है, हमेशा यही strategy follow करना. All right, this is for all those kids who are starting fresh. If you have already taken a course and you are thinking of revising, right, और जो second attempt दे रहे हो या सोच रहे हो कि कोई टेस्ट सीरीज लोगे या कोई मेंटरशिप प्रोग्राम लोगे, तो रफली इफ दिस इज व्हाट आई विल डू, दिस इज व्हाट आई विल डू एट इकोनीति, ये हम फॉलो करेंगे. अगर खुद से कर रहे हो तो भी यही रफ प्लान फॉलो करना. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल असेस के क्या गैप्स हैं, राइट? सो यू ऑलरेडी नो, यू हैव सीन योर प्रेपरेशन, कि यू नो कि क्या वीकनेस है, नहीं है तो some way to assess that, right? And then you start by revising your basics. उस रिविजन के साथ साथ as soon as you finish a topic you should be starting with PYQ writing, right? And जैसे ही एक सब्जेक्ट खत्म होता है उसका सेक्शनल टेस्ट देना है, ये ऑर्डर फॉलो करना है. सो यू स्टार्ट विद माइक्रो. माइक्रो का सपोज कंज्यूमर थ्योरी खत्म हुआ, अगर उसके जो है PYQs जो भी है तुम्हारे पास वो लिखना चालू कर, राइट? एंड साइमल्टेनियसली, राइट, यू स्टार्ट विद प्रोडक्शन थ्योरी. करते 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 जैसे ही तुम्हारा माइक्रो खत्म हुआ, माइक्रो का एक फुल सेक्शनल टेस्ट, देन you start with the second subject, you start with the third subject, follow the same thing. All right. Finally, once you've done, then you start attempting combination tests. है ना? So all of these, suppose जो ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में पेपर 1 में तो 5 सब्जेक्ट है, तो 5 सब्जेक्ट एक साथ टारगेट करने की जगह इंस्टेड यू कंबाइन सपोज माइक्रो और मैक्रो, ताकि तुम्हें सिर्फ माइक्रो फ्रेम, मतलब माइक्रो आता है तो माइक्रो रिवाइज किया और उसी फ्रेमवर्क में घुस के लिख सकते हो. नहीं, इन द एक्चुअल एग्जाम यू विल नीड टू स्विच. कोई क्वेश्चन माइक्रो का होगा, फिर मैक्रो का होगा, वो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है. फिर और सब्जेक्ट इंक्लूड करो. फाइनली टेक अ पेपर 1 का फुल टेस्ट, पेपर 2 का फुल टेस्ट. दिस इज हाउ योर प्रोग्रेशन शुड बी. बट आंसर राइटिंग यू विल सी, मैंने ये वीक 2-3 या वीक 4 से ही शुरू कर दिया है ना. आंसर राइटिंग को डिले नहीं करना है, ये सारा खेल ही आंसर राइटिंग का है. ऑल ऑफ दीज एग्जाम्स, नो मैटर हाउ मच यू नो, you have to be able to write it. Okay, all right. Now if there are no questions, or you tell me if there are questions, then I want to show you a few things कि हम इकोनीति पे कैसे करते हैं. But if you have a few questions or any clarification, then we can get to that. Not now. Okay, anyone else? So we have Muskan and Sindhuja and Tina and Abhinav and Devsena. No. Okay. Okay, Muskan. Okay, Yukti. ठीक है आयुष. All right, Tina. चलो फिर. Let's go ahead. So now I just want to give you a brief, overview of how we do things at Econiti. And let me just show you. So, of course, the basic is there कि lecture होगा और
यू नो रिसोर्स होंगे, नोट्स होंगे, वो सब होंगे। लेकिन एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, बिकॉज आई एम अ वेरी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड पर्सन टू अ फॉल्ट। सो अगर इफ यू काइंड ऑफ सीन फ्रेंड्स, so I'm you know I'm Monica basically. So I need things to be very structured and I need things to be, so I have also built the course like that. So सारी चीजें बहुत ही structured तरीके से चलती हैं. You will have a lesson plan with you for every subject, right? It will be followed as much as it can be followed. Every lecture will be live and live streamed as well. So online attendance at the same time. Plus, you will have recordings. So we make it a point that we provide you with recordings for 18 months. मतलब कि यूजुअली अगर हम जुलाई में शुरू कर रहे हैं तो एग्जाम कहीं ना कहीं सितंबर में होता है, तो तब तक तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग्स हों. दिस डज क्रिएट अ प्रॉब्लम. सो व्हाट यू विल सी इज दैट बाकी जगह पे the recordings are only say valid for a few days. Now there is a reason. अगर तुम पूरा रिकॉर्डिंग देते हो तो बच्चे क्लास में नहीं आते हैं, ठीक है ना. और अगर तुम रिकॉर्डिंग नहीं देते हो तो द किड्स सफर, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स द किड्स आर आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. सो इट्स अ चॉइस. नाउ व्हाई डू अदर इंस्टीट्यूट्स डू दैट? उसका रीजन सिंपली ये है कि वो बच्चे ताकि क्लास में अटेंडेंस में आए, वो रेगुलर रहे, which is a completely legitimate reason to do. I just found out from like the experience that I had was that students were like anyways struggling a lot. क्योंकि वो जैसे अगर ऑप्शनल कर रहे हैं तो कहीं जीएस की कोचिंग ले रहे हैं, तो उसकी क्लास के साथ फिर वो कर रहे हैं, फिर इधर उधर करते करते वो बस पागल ही हो रहे हैं. ऑल्दो उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है कई बार कि भाई वहां तो क्लास अटेंड कर ली और यहाँ पे बंक मार दिया क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी. लेकिन आई एम फाइन विद दैट बिकॉज it's the aim is to make life easier for the kids and not take away any resources just because they are, कुछ भी उनका रीजन हो सकता है. सो आई बिलीव दैट आई शुड ट्रस्ट माई स्टूडेंट्स. दैट इज वाई द रिकॉर्डिंग्स विल ऑलवेज बी अवेलेबल. 18 months तक तो रहेगा ही. उसके बाद भी depending on कि कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो, there's simply a monthly fee that we charge, but it's very minimal and you will have the recordings. Apart from the recordings, you will also have all these references. तो the way I teach is class में तो I teach, लेकिन हर lecture के बाद we also have references that are highlighted so that you can go through the books as well. So you will not have to open the book और उसमें ढूंढना है कि क्या पढ़ना है. जो चीज पढ़ना है वो highlighted रहेगी, color coded रहेगी, and you can go through the reference along with the class lecture. प्लस क्लास में जो भी लेक्चर होगा वो जो बोर्ड वर्क है, बिकॉज वी ऑल ऑफ अस नाउ यूज स्मार्ट बोर्ड्स, सो ऑल ऑफ दैट कैन बी कन्वर्टेड टू पीडीएफ. That PDF is again shared as a resource. So you will have the entire lecture recording plus reference plus that PDF as a resource. I will also show you that how we organize it. उसके बाद then after every topic that is covered, I have created MCQs. MCQs are not relevant for example यूपीएससी के लिए रेलिवेंट नहीं है, आईईएस के लिए नहीं है ना. लेकिन एमसीक्यू का पर्पस ये है कि the topics, the concepts are on your tips. So though that practice keeps you, um, you know, keeps things fresh in your mind. So you will have MCQs after topics, and you will also have PYQs that are sorted not only subject wise but within subject topic wise. I'll also show you that. Finally, lesson plan I already talked about. So let me just show you okay, how do we have things, and then I'll go to the next thing, right? So you will see that this is just, I have just logged in as some student that we had. और यहाँ पे suppose we go to say international economics, right? So international economics में you will have all these lectures जो कि यहाँ पे listed हैं, and you can start with this. So what you will have, I've come to the, हाँ, so suppose ये एक lecture है which is uploaded over here. For every lecture you will have these two resources, you will have the highlighted references, and you will also have the PDF, right? So the board work PDF. So let me just show you. So once I download that,
all right? So this is Salvador, right? And it is highlighted just कि कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कौन कौन सी चीजें पढ़नी है. What this does is that it doesn't leave you in a state where all you have is your notes. तुम्हें पता होगा कि कौन सी चीज का नोट कहाँ से बनाए और जब कोई चीज में कंफ्यूजन है, सो यू नो द रेफरेंस दैट यू कैन रेफर टू. अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट यू विल फाइंड इज कि ये जो चैट जीपीटी और ये क्लॉड है ये ठीक बताते हैं, मैं नहीं कहती कि ये ठीक नहीं बताते हैं, लेकिन जिस डेप्थ के लिए रिक्वायर्ड है वो कई बार वैसे नहीं बताते हैं, कई बार ये ब्लेटेंटली गलत भी बताते हैं. सो ऑलवेज ऑफकोर्स कुछ छोटे मोटे डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली यूज देम, बट यू शुड नो कि कौन सी चीज कहाँ से पढ़ाई गई है. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऑलराइट. Similarly, this is the board work. I think my handwriting is all right, not that bad. But ये सारा board work भी will be shared and you will have them with you along with the lecture recordings, everything. Okay. All right. After that, I'll just show you that these are the kind of MCQs that we have. We will have a better format for that on Zaptic. I'll just come to that. So you have a 15 question assignment for, say, example, trade theories. So trade theories के ऊपर ये question है, इससे फायदा क्या होगा? इससे तीन फायदे होंगे. पहली चीज की तुम्हारा concepts will be on your fingertips. Secondly, a lot of times we are also preparing for backup exams, है ना? और बैकअप एग्जाम्स में चाहिए होते हैं एमसीक्यूज. मेनली बैकअप क्या होगा तुम्हारा? यू विल हैव योर सीयूईटी, यू विल हैव योर सीयूईटी पीजी एंड योर यूजीसी नेट. These concepts will be very useful. You will also be in a practice for MCQ. ठीक है. सो वो चीज हो गई. और हाँ, देन PYQs, I'll just show you. So what I do is, this is the PYQs for international economics. ये is updated till the most recent year, but it is also color coded के कौन सी चीज कितनी आती है. So for example, old trade theories and standard trade theory is all the yellows. So by this itself you know कि इसका weightage कितना है. ठीक है. Then you have your blues, then you have your, so you know कि भाई trade policy and economic integration important topic है. You know कि say ये WTO is also an increasingly important topic and all these things, right? So these three things you will have: the PYQs, the MCQs, and of course the recordings and all of those things. All right. Okay. This is the kind of preparation environment that we have at Econiti. Now, the problem that, so what I do is I do believe in giving a lot of personalization to students. That was doable when I had few students. लेकिन जैसे बच्चे बढ़ते हैं तो वो level of personalization provide करनी है. Of course, humanly इतना possible नहीं होता है. Still, I do try कि मुझे all the tests that you have. So the tests will be given after every subject is finished. I will evaluate those tests and I will give you very personalized feedback. तो वो जो लॉन्ग फॉर्म वाले आंसर है तो मुझे मोटा मोटा पता रहता है कि कौन से बच्चे का क्या वीक पॉइंट है और किसका क्या स्ट्रेंथ है, क्या आंसर राइटिंग में इंप्रूवमेंट चाहिए और ये सब चीजें. बट ह्यूमनली इट इज स्टिल वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ थिंग्स फॉर मोर स्टूडेंट्स. सो फॉर दैट वी हैव नाउ, सो Zaptic जो है, if you know about it, it is our native टेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज अडेप्टिव इन नेचर. राइट नाउ हमने उसको सिर्फ RBI DPR फेज 1 के लिए लाइव किया था बिकॉज we are still preparing, so we will have it ready for UGC net but in the December cycle and for prelims and everything. लेकिन so all the students will have access to Zaptic for all the exams जो भी इस पे आएंगे. लेकिन हम Zaptic को वो personalization problem solve करने के लिए यूज करेंगे. वो इसीलिए क्योंकि you will, whatever MCQs that I showed that are on that portal right now, और वो थोड़े से मतलब they are not, they are fine but they are not going to keep a track of changes, but we will incorporate that into Zaptic. और यहाँ से the platform will keep a track of things, how you are progressing, कौन से subject में क्या weakness है, और if there is a subject that you are making good progress, it will keep on giving you harder and harder tests for that, so that you are able to, you are prepared till the level that is required for the exam. ठीक है. And you as well as the instructor, mainly me, but whatever other instructors, whoever we have, they will also have access to this. So you will
ऑल ऑफ अस विल नो कि किसका कैसा प्रोग्रेस है. इट विल बी इन डेटा. तो हम डेटा ड्रिवन पर्सनलाइजेशन एंड प्रोग्रेस कर पाएंगे. ठीक है. सो दैट्स दैट. उसके लिए what we have also built in is a baseline test that you can start. So wherever you are, जो भी तुम्हारा level of preparation है, you can go to zaptec.com and you can start, you can take a baseline test. So what we have done is we have created 3 tracks for it. Okay, so this is माई बैड. आई हैव ऑलरेडी टेकन इट क्योंकि मैं तुम लोग को दिखाने वाली थी कि क्या आया है. बट एनीवेज व्हाट इट विल कम इज इट विल गिव यू 3 tracks. इट विल गिव यू अ ट्रैक फॉर यूपीएससी ऑप्शनल. इट विल गिव यू अनदर ट्रैक फॉर आईईएस प्लस आरबीआई एंड अ थर्ड वन फॉर यूजीसी नेट एंड सीयूईटी पीजी. द डिफरेंस इन दीज ट्रैक्स इज कि ऑप्शनल में क्वांट नहीं होता है. आईईएस एंड आरबीआई में फुल फ्लेजेड सिलेबस होता है लेकिन लेवल हाई होता है. यूजीसी एंड सीयूईटी में भी पूरा सिलेबस होता है बट लेवल आईईएस और आरबीआई से नीचे होता है. सो दैट्स व्हाई दीज थ्री यू कैन चूज टू गिव मल्टीपल ऑल्सो इफ यू वांट. एवरीवेयर यू विल हैव 2 पेपर्स. एक में जहाँ पे पहले 5 सब्जेक्ट्स, दूसरे में यू विल हैव इंडियन इकोनॉमी एंड क्वांट एंड द एडिशनल थिंग्स. सो दीज आर different. So we have tried to kind of reach the level of the exam, but not so much on purpose, क्योंकि that will discourage the student. अगर तुम पढ़ना शुरू कर रहे हो तो of course you are not prepared for a question that is of the level of the exam. लेकिन फिर भी the level differs by the level expected in each of these tracks. So what I've done is I already took these tests and I'll just show you कि इसका कैसा report रहेगा. And you can also, I'll share the link also. यू कैन टेक योर टेस्ट. उसके बाद तुम अपना प्रेपरेशन कैसे मोल्ड करना चाहते हो, यू विल हैव अ बेटर आइडिया अबाउट दैट. ऑलराइट. गिव यू योर वीक एरियाज, गिव यू योर स्ट्रॉन्ग एरियाज एंड क्वेश्चन बाय क्वेश्चन the answer and where you made a mistake, everything as well. So it'll start with an overview. Now this is mine, but it's 18 is wrong on purpose. I just want to say ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आता है. मेरे से मेरी टेक टीम ने कहा कि प्लीज ऑल्सो मेक मिस्टेक्स सो दैट यू डू नॉट हैव ऑल स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स. ठीक है ना. तो ये मत सोचना कि मेरे को 18 क्वेश्चन मेरे गलत थे, मैंने जानबूझ के गलती की थी. ओके. ऑल राइट. सो यू विल हैव ए ओवरव्यू, right? And then you can also go to a subject level analysis. It will give you that. So for example, I made the most mistakes in public economics. That gives me a beginner level. Yeah, international game theory, macro were fine for me. And money and banking मेरा काफी अच्छा था. 5 में से मेरे सारे सही थे, right? So gives you a brief of where you are right now. You can also go to a question by question, you know, breakdown. Suppose this was wrong, so whatever was the right answer, कि उसका right था, क्यों right था, और जो तुमने choose किया वो wrong था तो क्यों wrong था, right? So all these things are there. For every question, it will give you that explanation for paper 1, then for paper 2 as well, right? So this kind of in-depth analysis you will have. And finally, it will also give you books that I've just shown you. So whatever is your priority, depending on कि किस चीज में तुम कितने ढीले हो, उस हिसाब से एक rough book suggestion. If you are not, if you are preparing independently, this will be useful for you. If you're already involved in some institute or within a mentor, so of course they will take care of this in more detail. But overall, this is going to be a good guide for you. All right. So ये बेसिकली इको नीति पे हमारा प्लान है कि हम जो लेवल ऑफ पर्सनलाइजेशन आई एम एबल टू प्रोवाइड, आई डू दैट. Beyond that, where my humanly capabilities end, Zaptic takes over and we are able to track how you are progressing as well. Okay. But whether or not you enroll with us, Zaptic का diagnostic तो आप ले ही सकते हैं, वो आप लेके देखें and you can adapt your practice accordingly. Okay. So yeah, so that's it from my side. 1.5 घंटे से मैं बोल रही हूँ, अब आप बोले मेरा हो गया. हाँ. सो अच्छा, यू डिड हैव सम क्वेश्चंस दैट यू हैड पुट. तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो कि अनआंसर्ड है एंड यू वांट मोर क्लैरिटी ऑन दैट, यू कैन आस्क मी, और यू हैव एनी अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. माय श्रद्धा है. I hope there is no question right now. हाँ, there's nothing in the chat box. हाँ.
पूछो पूछो पूछ लो। हाँ Hello, ma'am. I'm हाँ audible. yes you are. Uh, Good afternoon, ma'am. It was a really an insightful and wonderful session. Thank you, thank you. Ma'am, Good to my question is that right now I'm enrolled in IGNU. I'm doing my master's. I'm in second year, right? hmm. So I wanted to ask, like I have to choose now what subject what paper I have to go for, right? What specialization I have to choose, right? So I'm a little confused, like which one I should like go for, right? Like uh, like the paper which are on offer are introductory econometrics and advanced econometrics. So should I go for advanced one also, because I'm appearing for these exams, right? And I have to next year I have to appear for this also. Like should I go for this or not? Like I'm a bit confused. You are appearing for IES or UPSC? IES and RBI grade B. हाँ तो इकोनॉमेट्रिक्स तो करना ही है. But there are two econometrics paper, na? One is introductory and one is advanced econometrics. So should I So go for the advanced? have you done econometrics before? No, ma'am. No, So then not you yet. will have to start with introductory. You can take both, but the problem is that they will be in the same semester, right? Yeah. So they will. Can you tell me or can you send me? I have put my. I'll just show you. Anyways, you've been added to the WhatsApp group, है ना? तो वहां पे जो इकोनीति वाला नंबर है, उसमें you can send me the syllabus of introductory and advanced. Then I will be able to advise you better. हो सकता है एडवांस में ऐसी चीजें, अगर एडवांस में हम पैनल डेटा से शुरू ही कर रहे हैं, अगर हम एडवांस में कॉजल एनालिसिस से शुरू कर रहे हैं, then you don't need advanced, not for these exams. Then you can just work with introductory. So I will need to see the syllabus. वो मेरे को दिखा दोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी. I'll be able to better advise. Ma'am, I took your class like for econometrics, which was scheduled by Vibhas sir next IS. So whatever you taught in that class, it was included in introductory only, right? And advanced, Oh, हाँ yeah, तो then you don't need. But if you want to study advanced तो ले सकते हो. But हाँ उसके अलावा जरूर. Oh, so you've taken my class. अच्छा अच्छा अच्छा. yeah, Okay. yeah. But Okay. and also like my weak point is quant and every econometrics quant and the mathematical part, right? For both the exams. So I don't know how to go ahead with it. Rest of the things are clear for me, like micro, macro, and international economics. Rest of the things are clear, but this is the part which I'm lagging right now. So how should I go ahead? Practice. And what about like I think uh, just doing self study is not enough for me. Like I have to do something else also other than just self study. So you please help with it. So what you can do is you can take some sort of a test series. Hmm. Only take the one that provides you with evaluation. प्रॉपर इवैल्यूएशन, ऐसा नहीं कि तुम टेस्ट लिख रहे हो और उसको कोई पढ़ने लिखने वाला नहीं है. ठीक है ना? सो यू नीड टू टेक अ टेस्ट सीरीज दैट प्रोवाइड्स यू विद evaluation, possibly also with some mentorship. Depending on how much you need it, you will know your needs better. I have seen a lot of students जो कि जिनको कि given कि ये सारे एग्जाम्स हैं ऐसे जो कि सर खाते हैं और वो चाहिए रहता है थोड़ा सा कोई मतलब सपोर्ट करे, तो having a mentor is very very useful. लेकिन definitely at the minimum whatever test series that you're taking, इवैल्यूएशन के साथ वो तुम्हें इवैल्यूएट करके दें तुम्हारा पर्टिकुलर कॉपी, और पर्सनलाइज फीडबैक दें, तभी यू विल बी एबल टू इम्प्रूव. अदरवाइज सेल्फ स्टडी तो तुम कर ही रहे हो ना. So does Econity offer such test series? Like I Yes, don't know yes. as of हाँ now. हाँ Okay, हाँ, we do, we do. fine. So we do have a mentorship वाली चीजें also, where you will have sessions with me and PYQ discussion sessions included. So we do it for the entire IES वाला चीज. If you need specifically for econometrics only, you can tell me, we can talk. और अगर तुम्हें पूरे के लिए चाहिए तो तुम उसका भी देख सकते हो. I will tell you कि सबका क्या है. But हाँ, Fine. wherever is there टेस्ट, टेस्ट से ज्यादा है इवैल्यूएशन, क्योंकि तुम टेस्ट तो पीवाईक्यू लिख के भी दे सकते हो, है ना? लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि कोई तुम्हें बताए कि तुम्हारी गलती हो रही है तो कहाँ हो रही है, और अगर कोई चीज में कुछ गलती नहीं भी है तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं ना. तो विभासर के साथ तुमने लिया है, तो विभासर ने बोले होगा कि आंसर स्ट्रक्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? सो योर इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, इसके बिना ये सारे एग्जाम्स का मतलब इट्स नॉट लाइक कॉलेज एग्जाम के तुम्हें जो आता है तुम लिख दो. दैट आंसर स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट.
अ लॉट ऑफ टाइम्स एग्जाम सेटिंग में तुम वो आंसर स्ट्रक्चर नहीं लिख पाते हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन फॉग Yes. हुआ या फिर प्रेशर है या टाइम हुआ है। तो उस चीज को कैसे अचीव करना है वो ही मेन खेल है। ये हम सब जो है अंडर सबने इकोनोमेट्रिक्स सॉरी बीए तक तो पढ़ा ही है। हम कुछ लोगों ने मास्टर्स तक भी पढ़ा है तो आती हैं चीजें। अनलेस कि बिल्कुल ही पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया था बट यू नो थिंग्स। द मेन गेम इज ऑफ आंसर आंसर राइटिंग। तो उसके लिए जो है सो व्हाट यू डू यू टॉक टू मी मेरे को अपना स्पेसिफिक नीड बताओ तो उस हिसाब से वी विल डू थिंग्स। ठीक है। एनीवन एल्स देयर आर हाँ इज देयर एनी रिक्वायरमेंट हैविंग पब्लिश रिसर्च पेपर वेल सी दीज आरबीआई हो चाहे आईईएस हो दे आर इकोनॉमिस्ट जॉब्स मतलब ये रिसर्च हैवी जॉब्स हैं। इंटरव्यू तक एक पब्लिश रिसर्च पेपर अगर होगा तो इट विल एड अ वेरी गुड यू नो एडवांटेज टू योर सीवी। बट ये रिक्वायरमेंट नहीं है ना इट इज डिजायरेबल सो वी नो दैट। एक्चुअली क्या होता है ना कि even though the desirability is that you are very well versed with research बट जो भी बच्चे इन ट्रैक्स के लिए प्रिपेयर करते हैं वो रिसर्च नहीं कर रहे होते साइड में है ना एक ही चीज कर सकते हो ना ढंग से। इवन दो इफ यू आर डूइंग रिसर्च या तो तुम कोई जुगाड़ू तरीके से करो और तुम कहीं भी पब्लिश हो जाओ। वो कर सकते हो तो करो दैट डिपेंड्स ऑन हाउ यू नो व्हाट इंटेग्रिटी academic integrity you want in your career. That's up to you. If you do have a research paper, definitely it will be a very big plus, right? लेकिन अगर कॉलेज में डिसर्टेशन है राइट अगर एमए में या बीए फोर्थ ईयर में कुछ डिसर्टेशन है दैट शुड गिव यू अ वेरी गुड एडवांटेज। क्योंकि डिसर्टेशन और स्पेशली अगर डेटा बेस्ड डिसर्टेशन है अगर आरबीआई मेन फोकस है तो कुछ ना कुछ मैक्रो डेटा वाला वो करो नॉट योर डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स राइट सो डोंट डू ए और यू कैन डू ऑफ कोर्स एवरीथिंग शोज दैट यू आर गुड विद डेटा। लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा मैक्रो बेंड हो है ना क्योंकि तुम मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने जा रहे हो तो थोड़ा सा मैक्रो बेंड हो थोड़ा सा पॉलिसी एंगल हो तो इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल। नाउ द थिंग इज दैट गेटिंग अ पब्लिकेशन अनलेस यू आर पेइंग अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट और तुम कुछ जुगाड़ू तरीके से कर रहे हो। इकोनॉमिक्स में पब्लिकेशन का अच्छे जर्नल में पब्लिकेशन का मतलब है 6 से 8 महीने सिर्फ रिव्यू प्रोसेस में। ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है वो इतना लॉन्ग है कि वो अकेडमिया वाले ही करते हैं। वो जो ये एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं वो इतना नहीं करते हैं क्योंकि नहीं कर पाते हैं। अनलेस द अदर ऑप्शन इज कि सपोज यू आर अ फैकल्टी एंड यू हैव अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग अंडर यू एंड इट इज देम हु आर वर्किंग और तुम्हारी पब्लिकेशन जा रही है वो तुम्हारे को ऑथर्स बन जा रहे हैं है ना। तो ये सेटिंग में आना थोड़ा मुश्किल होता है एज अ स्टूडेंट to be published is very difficult published in a good journal। if you are okay with publishing in any journal you can do that। इंडिया में भी कुछ जर्नल्स हैं जहाँ पे तुम इजीली पब्लिश कर सकते हो। इफ यू आर एबल टू डू दैट वेरी गुड व्हाट यू कैन डू इज यूज योर डिजिटेशन टू गेट पब्लिश्ड। डेफिनेटली इट विल एड बट इट इज डिजायरेबल इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है। ओके मुस्कान डज दैट आंसर योर क्वेश्चन? यू कैन गिव मी अ थम्स अप। Okay. Now, Tina has a question about RBI DEPR exam preparation. On average, how much dedicated time period does it usually take to prepare properly for the exam? Is it possible to clear through self-study only? Uh, See, everything is possible. अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहें तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। Depends on how disciplined you are. Depends on that you have some guidance in answer writing. सो यू कैन डू इट। टाइमलाइन के लिए पहले बात कर लें। आरबीआई और आईईएस में बिकॉज यू ओनली हैव टू स्टडी इकोनॉमिक्स यू कैन यूजुअली डू इट विथ समथिंग ऑन द साइड। आई वुड नॉट सजेस्ट दैट यू डू इट विद अ फुल फ्लेजेड कॉर्पोरेट जॉब क्योंकि कॉर्पोरेट जॉब में अपना सोने का टाइम नहीं मिलता है एग्जाम का टाइम कहाँ से मिलेगा है ना एग्जाम के लिए सिलेबस पढ़ने का टाइम। So I wouldn't suggest that you do it with a full-fledged job, but you can do, say,
कोई आर्यशिप कर रहे हो उसके साथ कर सकते हो, है ना. दैट मीन्स दैट वेंस यू स्टार्ट इन से जुलाई, सपोज जुलाई अगस्त में यू स्टार्ट, you will be done with the entire syllabus by say February end. And this is I'm talking कि तुम आंसर भी साथ साथ में लिखते जाओ, है ना. एंड देन यू स्विच टू एमसीक्यू मोड और उसका प्रैक्टिस करो. एंड देन सो 1 year शुड बी एनफ. एटलीस्ट फर्स्ट ईयर का तुम्हारा जो अटेम्प्ट होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट, वो भी काफी डिसेंट अटेम्प्ट हो सकता है अगर तुम इतना टाइम लगा के सिलेबस के साथ साथ आंसर भी लिखो. आंसर लिखना बहुत जरूरी है. देखो अभी 14 तारीख को 14th June वॉज phase 1, राइट. एंड 25th July 26th July इज phase 2. गिन के जो है 42 days हैं. सो अनलेस यू हैव प्रैक्टिस्ड आंसर राइटिंग शुरू से, तब तक वो चीज अभी शुरू नहीं कर सकते तुम उसको. यू कैन ब्रिंग इट बैक, यू कैन गेट बैक इन टू द मोड, यू कैन गेट बैक इन टू लॉन्ग आंसर राइटिंग मोड फ्रॉम एमसीक्यू मोड. बट यू कैनॉट स्टार्ट आंसर राइटिंग मोड एंड डू समथिंग मीनिंगफुल इन 40 days, है ना. तो 1 साल का साइकिल, फर्स्ट अटेम्प्ट काफी डिसेंट दे सकते हो. सेकेंड अटेम्प्ट तुम एक्चुअली कुछ हेवियर जॉब के साथ भी कर सकते हो. सो वंस योर सिलेबस इज डन, then you can do a job that say is 9 to 5 and you are able to give 4 to 5 hours a day. Then that is also, but if you are studying things for the first time, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आर्यशिप टाइप की चीज कर लो, लेकिन फुल फ्लेजेड चीज मत करो. नाउ थिंक अबाउट सेल्फ स्टडी एंड ऑल. अगेन डिपेंड्स कि तुम्हारा खुद का रूटीन कैसा है, तुम्हारा बेस कैसा है. अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग है एंड यू ओनली नीड टू go in a bit more depth and only modify it to the kind of exam and the questions and incorporate current affairs in your notes and everything, तो तुम कर सकते हो. अगर तुम्हारा बेस बहुत हिला हुआ है, तो जनरली इट इज यूजफुल दैट यू टेक हेल्प फ्रॉम एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बिकॉज वो जो आंसर राइटिंग करोगे उसका फीडबैक भी चाहिए, चीजें स्ट्रक्चर तरीके से कंप्लीट भी करनी है. ऑल डिपेंड्स कि तुम्हारा अभी क्या स्टेटस है, क्या तुम्हारा फाउंडेशन है. ठीक है. डज दैट आंसर योर क्वेश्चन, टीना? ओके. इज देयर एनी अदर क्वेश्चन? या नो? इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन देन ऑल्सो प्लीज टेल मी, ताकि मैं ये लैपटॉप के सामने इंतजार ना करती रहूं. दैट्स ऑल. ओके. ओके आयुष. ठीक है. सो आई एम अज्यूमिंग दैट देर आर नो अदर क्वेश्चंस. ओके अभिनव. ठीक है. ऑल राइट. ठीक है. सो that's it from my side. This is what I wanted to do in this session, to give you a good insight into the syllabus, the overlap, the references, and also tell you okay, this is how we do things at Econiti. You make an informed choice. You can stay in touch with me if you need anything. I have put the information over here, the number as well as the email ID. You can get in touch with me whether you need any kind of guidance or yeah, वो मतलब मुझे most of the students that reach out to me are not enrolled with me. So don't worry that you're not enrolled and you cannot reach out to me. I am here as a mentor. I'm here as an educator. मेरा आपको वही अच्छा लगता है. अगर तुम मैं किसी भी तरीके से I can help you, I can guide you, I will be very happy to do that. Okay. So yeah, that's it for today. And we can stop here then. Okay. All right. All right, guys. So I will. Now I don't know how to stop the recording. I don't know. So maybe you guys can. Okay, I know. Okay, do that. All right. Okay.